and second, which we'll be talking about in terms of OOPS. So OOPS के major concept and the play would get over today. But coding and more in detail will be definitely carrying tomorrow also. So that's how the plan is. Tomorrow I might be having a slight different schedule. There was a meeting being lined up. मैं अभी उसमें ही go through कर रहा था. तो शायद आप लोग को लेट मिलूं या सेकंड हाफ में मिलूं या ऐसे कुछ करते हैं. Let's see. I'm still trying to reschedule it to normal way, but let's see क्या होता है कैसे, because they have lined up at 8:30 in the morning. So let's see what I can do. I'll let you know. Coordinators would be informed. So give me some time. Let's see. Currently बात करते हैं आज के लेक्चर के बारे में. Now what we have to understand, what we have to go. Simple. Exception handling. Before we could go with anybody who can roughly tell me according to them, what do you mean by exception handling? क्या होता है exception handling exactly? क्या होता है, क्यों होता है? Anyone? एरर ट्रैक करने के Error track करने के लिए. Apart from that, because they generally ask you, can you tell us what is use of exception handling? So then in that case, you should be ready to understand exception handling क्या है. We know if error can be occur in particular program, then we try to मतलब क्या बोलते हैं उसको We try to handle or manage it, basically. Okay. So let's go with that. Perfectly. चल जाएगा दोस्त. Now when you are talking about exception, let's understand three words called error, exception. This is quite interesting thing to know. And then the term called exception handling. So when you talk about each of the words, they are interrelated but yet independent of each other. So interrelated या independent है, decide कर लो. That's the way we look at them. तो अगर concept पकड़ के चलोगे, it's the way we work with error. Some logical or syntax or input output based malfunction, or you can say wrong action or operation would call us error. now बोलते हैं error है, मतलब क्या है? लॉजिकल कुछ गड़बड़ किया, कुछ सिंटेक्स में गड़बड़ किया, कुछ इनपुट आउटपुट में गड़बड़ हुआ, या समथिंग व्हिच वेंट रॉन्ग. Your operation went wrong, your action went wrong. So that's error. Now whenever error causes, system raises exception. Now people fail in understanding what do you mean by exception. People say exception is error. No, exception is a way to report cost and possible also. मतलब एरर तो आया, क्यों आया, कैसे आया, किस तरह से आया. Now that triggers the system, that triggers the system. So क्या, क्यों और कैसे आया, that's a basic thing. क्या, क्यों और कैसे हम लोग ने हैंडल किया, that's the basic thing जिसका आप बात करते हो. तो एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है, मतलब सर आर वी ट्राइंग टू रेफर बोथ? Yes, if possible for me, but just saying that there is an exception is not enough. I need to tell why, how, and what happened, what went wrong. So that's exactly exception is about to get into picture. ठीक है, handling क्या है? Then is our programming. Way to still have either safe close, or alternate run is exception. So as the way means handling, हेलो बोलते हैं ना बहुत बार, गड़बड़ तो हुआ,
फिर हम लोग एक दूसरे को उत्तर नहीं देखते, कुछ तो करते लाइक रिमेम्बर कभी ना कभी हुआ होगा, मेरे साथ 2 3 4 बार हो चुका है व्हेन सम ऑफ द क्लोज फ्रेंड्स सेड अरे बैंड बजी, क्या हुआ, घर पे मालूम पड़ा रे ऐसे 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 ऐसे, ओके देखते क्या कर सकते हैं। और क्या मतलब क्या मतलब मुझे भी नहीं मालूम है, रुक लेट्स प्लान आउट समथिंग, लेट्स डू समथिंग। हम लोग भी तो करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एरर आया, एक्सेप्शन रेज हुआ एंड हैंडलिंग। बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। याद करो तुम्हारी माँ दुनिया की सबसे प्यारी कैरेक्टर, गुड, वो अभी तो सब घर पे बाहर निकलोगे, मैटर ऑफ टाइम ना, सो बाहर निकलोगे और नो she knows that you are in a lecture, you are in a meeting or something. She calls you up and she just says this word. शाम को सीधा घर पे आना, आपसे बात करनी है, and the phone gets cut. That's error. That's error. अब जितने भी पाप किए हैं ना, सब याद आएंगे. And you will start thinking, माँ कसम क्या बजी, क्या हुआ. Series of errors would come into picture. Some of the example. कल रात को लेटर पढ़ रहा था, मैंने रखा क्या यार, रह गया बाहर. Shit. Second exception. अरे वो गिफ्ट था, ऊपर रखा था, गिरा बिरा की क्या, बैंड बजी. सेकंड एक्सेप्शन. थर्ड, कल ही बाहर घूमने गया था, किसी अंकल आंटी ने देखा, घर पे अपडेट गया कि क्या, कि यार अमर ऐसे ऐसे जगह पे दिखा, मर गए. तो वुड यू एक्सेप्ट घर पे जाके हाँ, नहीं, obviously it's not, that's not human nature and that's not fun of life. We have exception handling coming into picture. अब हम लोग का दिमाग कैसे चलता है, नॉर्मल रन, वी विल ट्राई टू हैव आइदर अ सेफ क्लोज, यानी कि भाई इशू खत्म हो जाए, या अल्टरनेट, या ऐसे ऐसे कुछ नहीं था, मैं शरीफ बच्चा, ऐसे गलत सोच मत. तो लॉजिक इज वेरी सिंपल. हम लोग क्या सोचेंगे, दिस इज हाउ माइट बी 3 ways. पहला एक्सेप्शन आया तो आई विल बी प्रिपेयरिंग. पहली बार लाइफ में खुशी होगा कि लाइफ में वो लेटर में नाम नहीं है, बाबू सोना चिकू पिकू जो भी लिखा है, मेरा नाम तो है ही नहीं. डन, मेरा लेटर नहीं है, वो मेरा क्लासमेट है, उसने स्पेलिंग चेक करने लेटर दिया था, मैं तो खाली ऐसे रेन मार्क करना बाकी था, कहाँ कहाँ एरर मिस्टेक्स है. पहला एक्सेप्शन हैंडल एंड होपफुली सिस्टम विल रन विदाउट एनी प्रॉब्लम. सेकंड, गिफ्ट अगेन मेरा नहीं है, दोस्त को मिला था, वो घर पे नहीं ले जा सकता तो मुझे दे दिया, तो मैं रखने लेके आया, सिंपल. अब थर्ड भी एक्सेप्शन है कि भाई अगर किसी ने देखा तो यार, अब बीइंग अ लार्ज साइज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज इज आई गेट नोटिस फ्रॉम किलोमीटर्स. बोलेगा अमर सर. सो दैट्स हाउ द थिंग्स आर, फाइन. बट कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो याद है तुम लोग पूरा सिस्टम प्लान करके जाते हो. ये देख, घर पे अगर पूछा तो मैं तेरे को फोन करेगा, जो तुम्हारा पार्टनर्स इन क्राइम में होते हैं, अपना एक ग्रुप होता है, याद है, एक दूसरे को संभालने वाला. ये देख, मैं स्पीकर पे रहेगा शायद, हीरोगिरी मत करना, बोलना हम लोग सब गए थे, मैं और वो सिर्फ खाना लेने साइड में गए थे, शायद तभी किसी ने देखा और गलत से. What you did, forget that entire story now. What you did was, there was an error. Just one phone call made it very, very clear a normal access or normal system cannot flow further. Something went wrong. You understood all possible error, or you thought about all possible error. You thought about handling all the exceptions which you guys can do or which you can handle. What is your basic goal? इस scenario में तुम्हारा basic goal क्या था? Situation 1. किसी भी हाल में सिस्टम बस सेफ हो जाए, मीन्स वो टॉपिक खत्म हो जाए, किसी को देखना ना हो, किसी को बोलना ना हो, बस, या somehow ना वहां से निकल जाए, somehow वहां से उस सिचुएशन से निकल जाए. So exception handling talks about 2 things. Number 1 is the safe close. So safe close मतलब किसी भी हाल में program should not harm your system and should not go down. पहला stage make sense. Second, exception handling का second हिस्सा. The second part of exception handling says that no matter if you cannot have a so safe close, that's a primary. But can we have an alternate run? कि ये नहीं हुआ तो एक alternate run कर देते हैं, हम लोग बचा सकते हैं, या क्या हम लोग फिर भी continue कर सकते हैं even in presence of error? So that's the basic concept of exception handling. I hope everybody is clear with this. Any doubt? Any question? Okay. So now when you talk about exception handling, let's get few things done. Let's get few things clear in our head. Exception क्या, क्यों, कैसे, कहाँ से, किस तरह. Okay. Exception handling in Python goes with 3 blocks or rather 4. Try,
The block which you feel there might be error. Right. So right मतलब भाई जिसमें error आ सकता है वो वाला कोड यहाँ पे रख देना. Then there is obvious आया तो क्या? तो except exception बाद में मैं इसमें भी चेंज करूँगा to report and head. Report and head is the next block. But then there is also finally. या finally को नीचे लाते हैं यहाँ पे लाते हैं else block. Code to run if no error. If no error. मतलब अगर ये सर्वाइव कर गया और एरर नहीं आया तो मैं ये रन करूँ. And then there is obviously the final. Finally was खत्म. कुल उतारा रहा खत्म. Must execute in any. अब इसे पहले ठीक है, I'll give you time to copy. पहले सिर्फ शांति से समझो नॉर्मल फ्लो ऑफ द सिस्टम कैसे होता है. नॉर्मल फ्लो ऑफ द सिस्टम goes this way. We enter under a try ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. अगर एरर नहीं रहा तो हम लोग एल्स में जाएंगे खुशी खुशी, फाइनली में जाएंगे. And this is how normal flow will. So under normal situation, मैं यहाँ लिख रहा हूँ. Under normal situation, what we are expecting? Normal situation में try, yes. Else, yes. Finally, yes. Make simple. चार में से तीन ब्लॉक normal में. ये try plus else plus finally. Super. अब लाइफ इतना सिंपल होता है तो लाइफ नहीं बोलते ना. So understand, it's not a fairy life. देखते हैं अब अपना हालत. अब ट्राई चालू तो होगा. Maybe at some point there was an error. At some point there was an error. Error आया रे बाबा, error आया. अब क्या? Immediately stop your try. Come to accept, enter. Else skip हो जाएगा. Finally पे जाओगे. Finally run होगा. And then you okay. मतलब sir, in the case of error क्या क्या होगा वापस बोलो. Okay, let me put it this way. Try पूरा नहीं होगा because try would be partial. Sir, partial till the point there was an error. Error आया वो रुक जाएगा. So try would be always partial, followed by accept, followed by final. So from this system, if you can see, under any situation, I'm ready to accept कि finally तो चलेगा ही चलेगा. Hence it is called finally. No, well then finally it is family. Why? कुछ भी हुआ, गाली खाई, बड़बड़ की, जो भी की. But end of the day, don't forget, these are the people who would help you or who would stand by you or for you. So remember that how things would work. Remember that how things would operate. So how things would go further. So try, partial, accept, finally, try, else, finally. हम लोग उसका बात कर रहे हैं, हम लोग उस बेसिस पे चल रहे हैं. चलो अच्छी बात. Very good. चल जाएगा. ऑपरेट कर लेंगे. हो लेगा. अब थोड़ा आगे का बात. So try, else, finally, try, else, accept, finally. हम लोग इस पे बात कर रहे हैं. हम लोग इस ऑपरेशन पे बात कर रहे हैं. चलो. अब थोड़ा बड़ा. मतलब सर ये तो समझ गए. ट्राई इज अ ब्लॉक जहाँ पे हम लोग वो कोड लिखेंगे जिसमें एक्सेप्शन आ सकता है. अगर एक्सेप्शन आया तो नीचे एक्सेप्शन में चला जाएगा. यूज रिपोर्ट और हैंडल इट. देन यू विल गो विद द फाइनली. एल्स ब्लॉक इज ब्लॉक व्हिच इज केप्ट सो दैट अगर तुम्हारा एरर नहीं आया तो सो एंड सो होगा. So that is how we are working with. We are playing very safe. Okay. अगर मैं कहूँ what are the minimum number of blocks to be coded? Now be careful, these are interview questions. The minimum number of blocks coded in exception handling is try plus accept. These are the minimum.
the minimum. Can do with try and finally also. मतलब sir, fix बोल रहा हूँ ऐसे मत. Okay, let me put it this way again. This is what is to be coded. But ये हुआ तो will work. Work in normal case. मतलब error नहीं आया तो. Error आया तो finally execute होगा. Then error. ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली भी सिखाऊंगा. I'm just filling the list. Okay. ठीक है चलो. अब एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर तो think about this. If I am telling you guys, think about this. कि it's a very simple scenario, it's a very simple state to go with. अगर मैं कह रहा हूँ यार मैं बीमार हूँ, what would be as a friend if I say I'm not well, what would be your next question to that person? क्या हुआ? Guys, knock. Did you go to the doctor? Okay. Other than that, think about one more question. बीमार है, so don't you think you're curious कि क्या हुआ? What हाँ, happened? बीमारी क्या है? That's the first question that probably I would go for if anybody telling me, because जो भी मेरा team है बहुत प्यारा है. The best way of taking a leave is always this. So not feeling well. My immediate question, what happened? Then I get very interesting answers because my team is very sweet. And मैंने उन लोगों को पहले ही बोला, Maku, if you want to go on a date, say I want to go on a date, I'll try to get you a leave. But कोई मर गया बोल के मेरे को बाहर मिला ना तो दूसरे दिन पक्का तू जरूर मरेगा. तो होता है. So people are kind enough in my team to know wellness. So not feeling well unofficially. बोला officially पिक्चर का टिकट निकाला फैमिली के साथ जा रहा है तो मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर रहा. वेरी गुड, हैंडल करता हूँ जा. So the concept remain is very very simple. Exception handling. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? Exception है क्या है? नहीं, exception है. It is as good as system telling there is an error. Why? What? There is an error. अरे हुआ क्या? अरे error. ए भाई बोलना क्या हुआ? तो remember, they ask you this in interview. If I want to report what type of error, तो except ऐसे भी लिखा जाता है. So exception as ARG. So this is basically argument stores type of what type of error. जो टाइप का एरर है वो ARGS में आ जाएगा. हम ARGS से उसे प्रिंट कर सकते हैं कि क्या एरर आया था या किस तरह का एरर तुम्हारे पास था. So that is what we are talking about. That is how we are working. Give 5 minutes, just go through entire screen. If possible, take it down. क्योंकि अब इसके बाद थोड़े प्रैक्टिकल्स का बात होगा. तो आपने ट्राई और एक्सेप्ट का क्या बताया था, जो मिनिमम कंडीशन लिखे थे? सॉरी आपने वो जो मिनिमम कंडीशन लिखे थे ना जिसमें ट्राई और एक्सेप्ट था, उसका क्या बताया था एक्सप्लेनेशन? ट्राई एंड एक्सेप्ट इज द मिनिमम. बट अगर मैं जबरदस्ती करूं, नहीं और क्या ऑप्शन है? ट्राई और फाइनली भी चल सकता है. बट प्रॉब्लम है नॉर्मल सिचुएशन में तुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा ट्राई एक्सेप्ट या ट्राई फाइनली. अगर एरर आया तो हैंडल नहीं होगा. तो एरर आया तो फाइनली चलेगा एंड देन एरर आके रुक जाएगा प्रोग्राम. दैट इज ओनली डिफरेंस. ये सारी चीजें प्रैक्टिकली देखनी है. ये तो मैंने सिर्फ थियोरी तुम लोग को कवर करके दिया. ये बेसिक कॉन्सेप्ट से लिख के रखो. ओके सर. Okay, so don't worry, we'll be working with it. ये करो, मैं parallelly sideways. Let's start the exception part.
Everybody done copying? Over. No, sir, wait, please. Be quick, people. All done, I feel. Chalo. People, please pay extra attention. Meanwhile, give me some time. This is better. Okay. So people, now let us try to understand how things are worked, how things are operated. Fine. ये सब तो थियोरी था, हमने कहा ऐसे चल रहा है, ऐसे ऑपरेट हो रहा है. अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा प्रैक्टिकलिटी पे लाते हैं. Let's go on this. Now, since I wanted to save time, because इसमें कोडिंग से ज्यादा समझने का काम है, तो एक एक चीज करते हैं. Before that, let me just work it out. Sharing this, keep it with you guys. इसमें changes होंगे. मैंने सिर्फ basic codes रखे हैं इसमें changes होंगे. So do take it down, people. Here is your collab link for the day. So now let's try to get few things. अगर बात करते हैं logically. So A, B, C. तीन चीजें हैं. We are working with it. Now the first code says what would happen if we work without error handling. ठीक है, चलो रन करते हैं. नॉर्मल केस में एंटर अ नंबर ए और बी, दो नंबर्स लेगा, उसके बाद सी कैलकुलेट होगा, सी प्रिंट होगा, और फिर एंड में बोलेगा स्टिल ट्राइंग टू लिव लाइफ अलाइव एंड किकिंग. सो आई जस्ट गिव यू दैट 5, आई जस्ट गिव दैट 2, एंड देन से सी is 2.5, still trying to live life alive and kicking. Job done. पहला काम हो गया भाई, पहला काम हो गया. वेरी गुड, चलेगा, चलो, नोट इशू. प्रॉब्लम कब आएगा? प्रॉब्लम आएगा अगर मैं डालू 0 and then any number. Divide by 0 is infinity. 0.0 divide by 0 is infinity. याद रखना. So 0.0 still worked with it. अब उल्टा करते हैं. 9 0. अब तकलीफ हुआ. So now we are ready to accept that program safe close नहीं हुआ. Program safe close नहीं हुआ. क्यों सर? As you can see, 0 और 9 लिया, उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया. उसने बोला एक्सेप्शन कॉल्ड नो डिविजन बाय 0 नॉट डन, बिकॉज यार एरर आ गया, मेरा प्रोग्राम रुक गया. तो सर isn't it safe close? No, it is not safe close. Consider the part of code which I am highlighting. No example समझो, वैसे थोड़ा भयानक वाला लेते हैं. मिसाइल लॉन्च, मिसाइल काउंटिंग एंड देन टारगेटिंग, ऐसा कोड मैंने लिखा था. मिसाइल लॉन्च हो गया और टारगेटिंग वाले कोड में एरर आ गया. मिसाइल लॉन्चिंग में बस वो मिसाइल निकल लिया. अब there is no target, no nothing, because program had a malfunction. तो बेस्ट ऑफ लक, या तो उड़ेगा ही नहीं, या तो मिस्टर इंडिया की तरह जिधर था उधर ही उड़ जाएगा. फिर मोगेम्बो खुश हो. So we need to work with a safe close. No, हम लोग बोलते हैं एक safe closure चाहिए. So let's bring it out. अब safe closure के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ? सिंपल, मैंने सारे कोड उठा के लेके आया. तो बी से ट्राई ए एंड बी करो. अगर इसमें एरर नहीं आया ना तो ही इज्जत से अमर प्रिंट करूंगा मैं. That C is so and so. So now the system would be very interesting to see. System would be very interesting to handle. कि भाई ट्राई का ये ब्लॉक चला, कोई एरर नहीं आया तो एल्स चलेगा, और फिर फाइनली चलेगा, और एंड में ये, मतलब सेफ क्लोज के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि इतना होने के बाद भी कोड चलेगा. चलो सीधा एरर पे लाते हैं, बिकॉज जो हम लोग को करना है यार. अमर डायरेक्टली, हाँ 9
एक मिनट, run. I'm saying 9. The number, sorry, number was on. So this would be 9. This would be 0. अब जरा फंडा समझ लो क्या क्या हुआ. जैसे ही डिवाइड बाय 0 आया, अब यहाँ पे अटक गए. आप सीधा एक्सेप्ट में गए, सेड एक्सेप्शन, हमारा एक्सेप्शन है, सॉरी. तो यू सेड यस, एक्सेप्शन हुआ. एल्स तो हुआ ही नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली सी में प्रिंट क्या करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे दोस्त कुछ नहीं है. ओके, देन इट गोज टू फाइनली मैं बाय अमर सर, मतलब सर सेफली चला प्रोग्राम, उसके बाद भी सेफली चला. इतना ही नहीं, नॉर्मल प्रोग्राम भी चला. स्टिल ट्राइंग टू लिव लाइफ अलाइव एंड किकिंग, माने चल रहा है. सर एरर आया फिर भी. हाँ, दिस इज द पॉइंट वेयर वी से एक्सेप्शन हैंडलिंग. सो लॉजिक कुछ इस तरह से है, फंडा कुछ इस तरह से है. डोंट वरी कि जहां पे एरर है, आई एम नॉट सेइंग एरर नहीं आएगा. एक्सेप्शन हैंडलिंग नेवर सेज एरर नहीं आएगा. एक्सेप्शन हैंडलिंग सिंपली सेज एरर आया तो मैं क्या कर सकता हूँ, एरर आया तो मैं क्या ऑपरेट कर सकता हूँ. Okay, so let us try to get that. Let us try to understand that with this example again on my screen now. Concept simple. I started with taking two numbers. This definitely is going to cause error in my case because मैंने 9/0 दिया था. 9/0 दिया था तो मैं सीधा accept पे जाऊंगा. accept पे प्रिंट करूंगा एक्सेप्शन है, फिर else देखूंगा ही नहीं, मैं सीधा फाइनली पे चला गया. फाइनली ने बाय अमर सर हैंडल कर लिया, नो इश्यूज. फिर फाइनली मैं नीचे चला गया, स्टिल ट्राइंग टू लिव लाइफ अलाइव एंड किकिंग. मतलब सर एल स्किप हो गया एंड आपका ट्राई में भी उतना ही चला जितने तक एरर आया. बराबर है. सर एरर नहीं आया तभी क्या क्या हुआ, वापस बोलो. ए बी लिया, सी कैलकुलेट हुआ, एक्सेप्ट स्किप हो गया, एल्स पे गया, प्रिंट हुआ, फाइनली पे गया, फिर स्टिल अलाइव एंड किकिंग चलते हैं. यानी कि दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग वेयर वी से कि नहीं यार, मैं एटलीस्ट ट्राई कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू सर्वाइव, आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि वर्क करो, ऑपरेट करो. नो, द बेसिक आइडिया ऑफ वर्किंग विद द एंटायर फिनोमेना इज द कॉन्सेप्ट हाउ वी प्लेस और हाउ वी मूव. ए बी सी इज इक्वल टू ए बाय बी एंड बियॉन्ड. दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. दिस इज हाउ वी ऑपरेट. क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? फाइन. तो अब यहाँ तक तो हम लोग ने क्लियर रखा. हम लोग ने बोला ओके ये ऐसे चल रहा है और ऐसे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं. वापस जाते हैं वहीं. अब एक गड़बड़ अभी भी है. एक्सेप्शन कौन सा आया वो तो कोई बोला ही नहीं मेरे को. मतलब इस केस में एक्सेप्शन आया, दैट इज ऑब्वियस. एक्सेप्शन कौन सा, क्या, वो तो कोई बोले यार दिस इज नॉट डन. मैंने बोला सॉरी यार, आई कैन. परफेक्ट. सॉरी, लॉजिकल एरर. अरे बाबा कौन सा एक्सेप्शन है, विच एक्सेप्शन इज रेस्ड? Zero division error. So there comes the second version of the Sun program where you could see a addition of things as ARGs. Now this will store what type of exception occurred. तो सर ऊपर वाला ही कोड टेक्निकली वही है, सिर्फ as ARGs है. अच्छा, as ARGs का बात करते हैं, क्या क्यों कैसे. So now working further, when I say 25/6 नॉर्मल कोडिंग देख लेते हैं. सर नॉर्मल है तो अपना सीरीज में जाएगा ना सर. जस्ट टू वर्क टुगेदर इन अ कोड. तो इसे 25/6 इज 4.16. सी प्रिंट हुआ एल्स में जाके, फिर फाइनली में गया बाय अमर सर, फिर बचा हुआ कोड नॉर्मल कोड, स्टिल ट्राइंग टू लिव लाइफ अलाइव एंड किकिंग चल रहा है. अब एरर लाता है, अब एरर लाता है. 9/0. अब as you can see, as somebody from the voice said, sir logical error है. एरर इनपुट का नहीं, एरर का टाइप मुझे चाहिए था दोस्त. So this is the type of error which occurred. This is a type of error which worked with. Oh, मतलब सर ये तो आपको मालूम पड़ा कौन सा है. And obviously it is needed. As a programmer, we are not only interested in saying there is an error. We are interested in knowing where and what went wrong. तो हम लोग को error जानना होता है ना. It is as good as somebody close to you. So it's a very basic human nature. If you have nobody, अगर मैं तुम लोग को बोलूँ कल, suppose example, guys, I'm not feeling well, so will not be taking a lecture. That's it. Okay, sir, take care. End of the story. सारे छोड़ो, ज्यादा गुस्से नहीं.
बट उल्टा यही चीज तुम्हारा कोई क्लोज फ्रेंड, तुम्हारे अपनों में से कोई बोले नॉट फीलिंग वेल, इमीडिएट क्वेश्चन इज व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हुआ रे अचानक से, कल तक तो नॉर्मल था, then you would be answering, and that's exactly what we are trying to do. So yes, you should not only say there is an exception, you should say exception क्यों आया. So as ARGS is a way of taking that. Everybody clear till this point? Everybody thumbs up if clear. Super. चलो. So अब यहाँ तक तो ठीक है. अब बात करते हैं स्टोरी को घुमाने का. अब तुम लोग को कहा था what are the minimum amount of blocks or minimum number of blocks needed. तो अगर मुझे उड़ाना है तो मैं एल्स उड़ा के रख सकता हूँ. सर एक मिनट, एल्स उड़ गया तो प्रिंटिंग कैसे करोगे? अगर एल्स उड़ गया तो प्रिंटिंग कैसे करोगे? उसका आंसर सिंपल है, आई वुड सिंपली कोड इट इन ट्राई ओनली. सर मतलब देख लो, मैं इसे हटा रहा हूँ, आई एम टेकिंग दिस नाउ, इसे हटा रहा हूँ, मैं बोले काम करूँ, इधर ही छोड़. तो मैंने कहा अमर सिंपल है, प्रिंट इधर ही कर, आई डोंट नीड एल्स ब्लॉक. तो पहला मैंने एल्स उड़ा दी, बट सर फंक्शनैलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, अभी भी काम बराबर होगा, देख लो तुम्हारे सामने है. सो रिमेम्बर विदाउट एल्स आल्सो इट वर्क्स. फर्क है अगर एरर आया तो एल्स तक तो तुम लोग यानी प्रिंट तक तो पहुंचने ही नहीं वाले. जैसे कि नॉर्मल सिनेरियो लेके आते, she is 2.5 by Amar sir, still trying to live life. मतलब सर सिंपल है, बिना एरर के चला तो सिंपल है ना, ये चला ये चला ये चला ये चला. अब नीचे आते हैं एंड वर्क करते हैं. ओके चलो आगे चलते हैं. अब 9 0 एक्सेप्शन आया. अब जरा समझो, मतलब सर यहाँ पे तो बंटाधार है, एरर आ गया, एरर आ गया, गुड, यू विल बी एंटरिंग ओवर हियर, यू विल से एक्सेप्शन एंड अमर सोन सो एक्सेप्शन आया, फिर मैं फाइनली मैं एंट्री मारूंगा, बोलूंगा हाँ बाकी का चल जाए. ओके सो पहला है 4 में से एक ब्लॉक मैंने उड़ा दिया. ओके नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स, सर कैन यू स्टिल लिव विदाउट फाइनली आल्सो? हाँ, finally is generally kept for those things which is must to execute for safe close. जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, मिसाइल का कोड था, अगर कुछ भी फेलियर हुआ तो ये बाबा पहले मिसाइल बंद कर, क्लोज इट डाउन, अपने को मोगेम्बो का टापू नहीं बनना है जो उड़ता है, कि नहीं बाबा आई डोंट वांट सेल्फ डिस्ट्रक्ट, रुक जा बीच में. So under that I am ready to even say कि अमर without finally can we survive? Yes, we can survive. So if we work with it without finally also, we can still survive with 2 basic blocks saying, मतलब ये नॉर्मल रन तो चल ही रहा है सर, बराबर है 3.0 और चल रहा है, लाइफ अच्छा है, लाइफ थोड़ा बुरा कर लेते हैं, अच्छा तो सब कुछ होगा नहीं. सो एक्सेप्शन डिवीजन बाय 0, स्टिल ट्राइंग टू लिव, यानी कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद तुम लोग नॉर्मल फ्लो पे चले जाते हो. नो, थिंक अबाउट इट. आई ऑलवेज लाफ एंड से वन ऑफ माय नोन इज गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप लाइफ में पहली बार, वो भी बेचारा अच्छा खासा 4.5-5 साल का रिलेशन आई थिंक, एंड द ब्रेकअप. तो एवरीबडी गोज एंड एडवाइस, अरे बी अ मैन इनफ यार, क्या होता है यार, बी स्ट्रांग, बी दैट. अब now people look at me कि तू भी कुछ बोल. I'm somebody who is very practical to approach, तो मतलब पहली बार है, hold on, थोड़ा हो जाए, थोड़ा दिन, go for a solo trip, enjoy yourself, think, and then things should be normal. What kind of advice was that? No, that was more practical. I mean, मैं उसको क्या बोलूं, कबीर सिंह बन के दाढ़ी बढ़ाए और कांड करे? नहीं. And it's happened. Everything what happens in a life for the first time feels कि आला मेरे साथ ही बहुत बुरा हुआ है. तो द गाय व्हेन वी वर डिस्कसिंग बोलते हैं फिर क्या होता है, मतलब फिर आदत हो जाएगा हमको. आई एम नॉट गोना बी हैप्पी टू टेल यू कि ऐसा कभी नहीं होगा, बेस्ट ऑफ लक, बट देन आदत हो जाएगा. मतलब सो एवरीथिंग हैपेंस, फर्स्ट टाइम तुझे लगता है बहुत दर्द हुआ, फिर वो बोला फिर प्रैक्टिस हो जाएगा. मतलब एज गुड एज अभी तू गिरता है पड़ता है तो रोते बैठता है क्या? नहीं, छोटा था तभी गिरने पर रोता था. सिमिलर इज रिलेशनशिप. अब ठीक है पब्लिक मेरा एडवाइस मानता नहीं है पूरी तरह से, बट दैट्स एग्जैक्टली विदाउट फाइनली आल्सो यू कैन सर्वाइव. So try, accept and work. Think about it. I have came across lot of people in life who after a sad breakup has came and told me, Amar, I had enough of bloody relationships. I'm not gonna love anywhere, anyone, and that's done. I'm sorted. मैं मनु बोलता है.
मैं बोलता नहीं, इंसल्ट नहीं करता, बट आई एम लाइक और 1 महीना 2 महीना 6 महीने में अमर यू नो समथिंग वंडरफुल हैज हैपेंड, तभी मैं ऐसा नहीं बोलता अच्छा तुझे याद दिलाओ 6 महीने पहले तेरे साथ क्या हुआ था, छोड़ दो. एवरीबडी हैज ट्राई एल्स, फाइनली इज नॉट नेसेसरी, फाइनली इज अ पॉइंट जो आपको कंपल्सरी करना ही है. जैसे अपने इंडिया में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, the way of you are going to be evaluated as success is a very different thing and in stages. For example, right now you are a student. तुम्हारे फैमिली के लिए तुमको सक्सेसफुल बनाने का मतलब है तुमको अच्छा जॉब मिला. तो तुम लोग यहाँ पे अपने नो लिटरली ट्राइंग हार्ड, बीइंग देयर, नो सीख रहे हो, गुड. जैसे ही जॉब मिलेगा, बिलीव मी द सक्सेस डेफिनेशन वुड चेंज इमीडिएटली. जॉब लग गया ना, सक्सेस अ कंप्लीट पर्सन इज शादी कर लो, सेटल डाउन, बस. उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा, बोलने लायक ही नहीं बचोगे तो ठीक है. तो देन यू गेट मैरिड, देन देयर इज अ सक्सेस रेशियो अगेन चेंजिंग. शादी हो गया, इट्स गुड. नाउ शुड थिंक अबाउट किड्स, देन द लाइफ इज सेटल. एंड ये होते रहेगा. दैट्स हाउ. याद है माँ बाप ने भी तो झूठ बोला हमसे, मानो ना मानो ये सब एग्री करेंगे. यस, इफ पीपल विल एग्री. एसएससी में याद है अपने को लॉलीपॉप पकड़ा था, बेटा एसएससी है, सिर्फ इस बार हम लोग बोल रहे हैं, वरना आगे कभी तुमको कोई नहीं बोलेगा. ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ था. यही चीज तो 12th में भी बोला मेरे को कि बेटा 12th है, फाइनल ईयर है, इस बार मैंने कहा तो आगे कोई नहीं बोलेगा. ये कर करके पीएचडी तक पहुंच गया यार. ना द लॉजिक रिमेन्स सिंपल. How you work, that's how the system is. Finally क्या है? Finally is that block which would run under any situation, whether there is an error, whether there is no error, whether that we can handle the exception or we couldn't. Finally will be. So generally interviews में question आता है where and why you will be using finally block. Most of the time finally block will be used for exception handling में, file closing, connection closing, डेटाबेस हैंडलिंग एंड सेफ क्लोजर के लिए. कि एरर आए या ना आए, मुझे ओपन फाइल क्लोज तो करना ही पड़ेगा. एरर आए या ना आए, मुझे ओपन डेटाबेस बंद तो करना ही पड़ेगा यार, मेरे पास ऑप्शन नहीं है. एंड अंडर दैट सिनारियो वी आर रेडी टू से कि भैया ये चीजें तो होगी, ये चीजें तो ऑपरेट करनी ही पड़ेगी. दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज हाउ वी आर वर्किंग विद. Everybody clear with this? फंडा समझा, कॉन्सेप्ट समझा? So this is what we are talking about. This is what we are working with. So finally के बिना भी लाइफ चल सकता है. अच्छा, अब अगर कोई तुमको पूछे what are the minimum blocks required for exception handling, this two, try, accept. ये minimum blocks है. These are minimum blocks required. हाँ, but जैसे इंडिया में जुगाड़ होता है ना, वैसे अपने पास भी जुगाड़ है कि अच्छा इसके अलावा कुछ और कर सकता है क्या अमर? वेल लेट मी शो यू दिस. अब ये पूरी तरह से वैलिड तो नहीं है, बट फिर भी चल जाएगा. सर एक मिनट, लेट अस अंडरस्टैंड. आपने एक्सेप्ट उड़ा दिया, हाँ, नॉर्मल सिनेरियो में ये चल जाएगा, ओनली इन नॉर्मल कोड. मतलब सर 5 डिवाइड बाय लेट मी रन दिस, आई हैव एन एग्जीक्यूटेड. So normal scenario में 5 and 2 में चल गया. अरे मतलब चल गया, सही है सर. 5 by 3 is 1.6666 by Amar sir, still trying to live life, alive and kicking. Panda simple, alive and kicking, panda simple. Okay, now go further. What is the next coming in? Okay, so अब आगे क्या, आगे किस तरह बात करते हैं, किस तरह से हम लोग कम्युनिकेट करेंगे. सर अगर एरर आया तो क्या होगा? अब एरर आया इस केस में तो याद रखना, पहले फाइनली रन होगा, फिर एरर रिपोर्ट होगा. ध्यान से देखो. इफ यू सीन द डिले, आई अगेन रिपीट माई सेल्फ, जरा ध्यान से देखो. पहले फाइनली का बाय अमर सर आएगा, फिर एरर दिखेगा तुमको. सो लेट मी पुट इट दिस 9. ध्यान से स्क्रीन पे नजर प्लीज, स्क्रीन पे नजर. ये पहले बाय अमर सर दिखेगा, थोड़े सेकंड्स के बाद, माइक्रो मिली सेकंड्स के बाद इमीडिएटली डेटा दिखेगा. समझा? दैट इज अ ब्लिंक. तो मतलब फाइनली चल जाएगा कि आइला एरर आ रहे, चल फाइनली तो खत्म कर दे. एंड देन नाउ दिस इज व्हाट फाइनली इज. एरर तो रिपोर्ट होगा, बट देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग विद इट. नो, सो
The basic logic which we are saying is try and finally सिर्फ 2 जन अगर यूज करोगे तो एक छोटा सा प्रॉब्लम होगा कि under the case of no error they would run, but under the case of error कुछ कुछ होता है, मतलब you need to be careful, क्योंकि उसके बाद यहाँ एरर आने पे पहले फाइनली चलेगा, फिर एरर रिपोर्ट होगा और आगे का कुछ नहीं होने वाला, आगे का कुछ नहीं होने वाला। क्यों? तुमने एरर तो हैंडल किया नहीं है, हैंडल करने वाला कोड एक्सेप्ट तुमने लिखा नहीं है। So this is exception handling. This is a basic phenomena of Python to work in. Luckily Python ने बहुत in depth exception handling पे काम किया ही नहीं है, जितना as per the need है, as per the necessity है exception handling उसने इतना दे दिया है, and we work with the option. We work with the option. So this is what we are talking about. This is how we are working and operate. So people be very careful. Very straightforward, very straight things to work with. But हाँ, these are important things जिस पे तुम लोग चल रहे हो. These are important things जिस पे तुम लोग work कर रहे हो. So be very careful. Be very clear to play with. This is how we work. This is how we operate with the entire stuff. Should be clear, people? Clear with this? People, thumbs up if clear. Great, Pila. Super. So that's it. There is nothing much to say, nothing much to say beyond this. So यहाँ तक हम लोग ने जो भी बात किया, we said exception handling, and we're done with it. Nothing much to discuss and necessary, nothing much to. But अब जो आने वाला है भाई, पे extra attention. Sir, क्यों? Because now we'll be talking about a concept of exception done. Oops. Next is going with the oops. So be very careful when you talk about the oops. Oops का एक ऐसा फंडा है, ऐसा लॉजिक है जो हम लोग बात कर रहे हैं to work with is the concept how we play. Oops इंटरव्यू के लिए फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है oops. इंटरव्यू सेक्शन में भर के पूछा जाने वाला टॉपिक है कि so and so क्या है, पिलर्स क्या है, oops कैसे चलता है. So people, please pay extra attention. हम में से बहुत लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किया ही नहीं हो. क्यों? जावा में इंटरेस्ट था नहीं, कॉलेज में सर कुछ हुआ था, बट हार्डली मेथड एंड हार्डली सब. तो अब मैं थियोरी बेस से तुम लोग के कोडिंग तक सब कुछ कवर कर रहा हूँ. तो विल टेक इन फैक्ट 2 entire days to work with this, 2 entire days to operate with this. So be very careful. Be very careful when you handle it. So people, make it a point that you understand this at a different level. So let's talk about this. People, pay attention. So when you tend to talk about, सबसे पहले let's understand object-oriented programming system. Oops. क्या है लोगोस? क्या है oops? किस तरह से है? किस तरह से हम लोग operate? तो जब आप oops का बात करते हो, oops क्या है? किस चीज को oops कहते हैं? So let me put it one. कोई भी प्रोग्राम 3 हिस्सों पे चलता है. Input, process and output. Now when you talk about input, process and output, this is 3 stage to talk about how we work. अगर मैं ऐसे जाऊं, that means first I look into input, then I talk about the process and then I get some output. It is called procedure oriented. Procedure oriented. Why? Well, it's a very simple reason why to say. तुम लोग एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, प्रोसीजर के हिसाब से आंसर्स मिल रहे हैं. Things are very straight and straight answer. कि भाई चलो, concept, logic, this is what we are talking about. Very simple, very straightforward. Very good. चलो अच्छी बात है. अब थोड़ा आगे का बात करें. Procedure. Oops बोलता ऐसे नहीं हो. So the concept of oops says that one should be what is needed. Think about this, and that becomes your objective by the way. After getting answer for this, you have to ask second question. How would I get it?
that will give you a procedure, and that procedure itself will give you third and the final point, what input. So सबसे पहला दिमाग में नो, अगर if you really want to know entire thing, if you really want to know entire stuff, let's try to understand output process input. Simple है. लॉजिक ये बोलता है कि हमारे पास क्या हमें चाहिए वो प्रोसेस समझाएगा और वो दिस इज टेक्निकली oops. So oops, it's not about class. Oops not is about object inheritance or anything. Oops is a thinking methodology. सोचने का तरीका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. नाउ ये अच्छा भी है बुरा भी है. अच्छा इसलिए बिकॉज इसमें रिजल्ट्स बहुत इजीली मिलेंगे एंड इट्स गोल ओरिएंटेड, वेयर वी आर वेरी क्लियर मुझे क्या करना है. आई एम वेरी क्लियर. मेरा सबसे ज्यादा एम्फसाइज है उस आउटपुट पे जिस पे मुझे मेरा इवैल्यूएशन होने वाला है. See, the cruel fact of life is, let me tell you this thing, it will never matter how good you do internally. What matters to society probably is how much money you make and how much, what clothes you wear or probably which car you drive. That's how people feel. Successful, ये बहुत relatable term है सबके लिए, but the problem is relationship with the term success is always differing. सर मतलब what is success? अगर मैं ये आज आपको पूछूं तो शायद आप में से बहुत लोगों का आंसर होगा सर 6-7 डिजिट वाला सैलरी मिल जाए बस, एटलीस्ट टू स्टार्ट विद, एटलीस्ट 6 डिजिट वाला सैलरी वाला कुछ हो जाए, ठीक है. कार, बंगलो, गुड. बट द कॉमन प्रॉब्लम और द मिस्टेक, पीपल लाइक मी, अगर मुझे आज पूछा जाए, ठीक है, दिस थिंग्स आर डन एंड डस्टेड. But I would say now, after getting 2 times COVID and एक महीना hospitalized होने के बाद और 7 दिन ventilator पे रहने के बाद, today I have changed my schedules to great extent. Now I today say कि नहीं है बाबा, health important. मैं सबको वही अक्कल लेता हूँ, वो health important है. मैं मेरे दोस्त लोग तो कंटाल गए प्रवचन सुन, मैं तुम लोग स्मोकिंग ड्रिंकिंग बंद करोगे, क्या को फालतू में, health is more important. क्या करते रहो, will you be on a ventilator for 7 days, come back home, people treat you as if दूसरा जन्म होके आया है. एंड मॉम, मेरी माँ तो इस तरह फोबिया में, मैं आज भी नीचे जाता हूँ, शी लाइक टेक केयर है बाबा. बोलो यू हैव सीन मी, आई एम अ वॉकिंग जेसीबी मशीन. बोलो मेरे को नहीं, मैं किसी से डैश हो जाऊँ उसको बोलना पड़ेगा कि भाई सब ठीक है, या तो नो इट हैपेंस, बट कांट हेल्प इट. Things change. So success for me right now is to regain my strength, regain my earlier form in terms of health, because it is suffering. It is still, I'm still recovering. It takes time sometimes. Okay, let's change it. Success to the person who is sleeping on a road is just filling his stomach for that particular day and have a good sleep. Success for somebody, no, ये जो करोड़पति लोग होते हैं, I have a lot of friends who are very well to do in terms of finance. Now, एक तो मुझे कौन सा तो भी नया, कौन से तो भी माँ, I mean due respect, but someone he is following is like, अमर तू आ सत्संग में बैठ. मतलब really, इसे नहीं बैठ, अंदर से शांति मिलती. And this guy owns, I think, Bandra में उसके 3 फ्लैट है. He is running his successful venture and he makes crores like anything. But now ये भाई साहब he is telling me 15 दिन ऋषिकेश का प्रोग्राम. So you're going? Yes. 15 days, लाइफ का 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बे. जा रहा है. So success. ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? जिस दिन ऑब्जेक्टिव लाइफ में क्लियर हो गया ना, सेकंड स्टेप पे जाना शुरू करो. प्रोसीजर. हम में से बहुत बार मैं बोलता हूँ ये, व्हेन आई टेक मोटिवेशनल लेक्चर्स फॉर किड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हर बार एक चीज बोलता हूँ. व्हेन यू सेट ऑब्जेक्टिव, दैट्स स्टेप 1. You forget the most important thing, hence you cannot achieve your objective. That's the procedure. हम लोग सबको अच्छा होना है, आगे बढ़ना है. Have you put effort for that procedure? Have you prepared the plan? Because then only you will put input. मैं सबको बोलता हूँ, this is how I approach towards life or my software developer or my research. क्या अचीव करना है? See, लाइफ में एक चीज क्लियर होता है अपना गोल, ऑब्जेक्टिव, आउटपुट. जो करना पड़ेगा वो बैठ के पुट अ पेन एंड पेपर, सिट.
ये करना पड़ेगा इसके लिए, ये करना पड़ेगा इसके लिए, ये करना पड़ेगा. Maybe that was one of the plan why you are here and sitting the lecture. The idea objective was very simple, a secure, safe, good career. क्या करूं? किसी ने बुला रहे ऐसे CDAC रहता है, DBDA रहता है, नो DAC रहता है, ज्वाइन कर लो, नौकरी मिलता है अच्छे से, congrats. The objective was to get a good career or get a good understanding about IT and the courses so that your career becomes good. The procedure was to give the exam, sit for the lecture, complete it, understand it. और input क्या था? या तुम लोग 8 बजे आ जाते हो सुबह. I mean, hats off to all of you. 8 o'clock on dot. I've seen more or less. मैं कभी-कभी 5-1 minute आगे पीछे हो जाता हूँ. But people are always logged in and all pumped up. Hats off. The logic. You guys ideally are doing this right. Oops, क्या है? If somebody asks you, you want to impress somebody in an interview, take this thing and put it in your head. What is oops? Sir, is this thinking process? Oops is not a programming system, it's a thinking process. जैसे ये बोलोगे ना वैसे उसके कान खड़े हो जाएंगे. ट्विंग क्या हुआ? It's a thinking process where we follow bottom to top approach. It's a thinking process where we follow bottom to top approach. Bottom to top approach. From what is needed to what input needed. Bottom to top approach. अगर मैं ऊपर से नीचे आता हूँ उसे प्रोसीजर ओरिएंटेड थिंकिंग कहा जाता है. अगर नीचे से ऊपर जाता हूँ उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहा जाता है. Why this? I mean, मैं क्या प्रूव करना चाहता हूँ या मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको? मैं एक ही चीज बताना या प्रूव करना चाहता हूँ कि दोस्त नीचे से ऊपर जाने की वजह से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आउटपुट. Process input are secondary. The most important thing is output because the question I said, the initial conversation I just started, society will judge you on one basis, output. The way you work with the output, the way you operate with the output is basis पे पूरा scenario चल रहा है. उस basis पे पूरा system चल रहा है. That is how we are trying to work with. That is how we are trying to operate on. So people be very, very careful when you work with. People be very, very careful when you use this. So this is how we work. This is how we operate, and this is how usually do the job. Everybody clear with this? फंडा समझा? तो oops is not a programming system. It's a thinking methodology which follows बॉटम टू टॉप अप्रोच. नीचे से ऊपर जाता है मेरे दोस्त. अगर नीचे से ऊपर जाता है तो पहले सोचो आउटपुट क्या चाहिए, फिर सोचो कैसे मिलेगा, फिर सोचो. सर प्रवचन देना आसान है, करके देखो. ओके, ट्राई दिस. Suppose I say write a program. Now putting it to more technical grounds. Write a program to find area of a circle. Let's break it. Let's tote this. Okay. What is objective area of circle? That is object. How to get area of a circle? Amar simple है. 3.14 into r to the power 2. Superb. तो ये फॉर्मूला देख के दिमाग का बत्ती चलना चाहिए कि भाई इनपुट क्या चाहिए. ऑब्वियसली अमर r would be input. अभी बहुत सिंपल लगा ना. प्रॉब्लम है ऐसे हम लोग बाकी के इक्वेशंस के बारे में नहीं सोचते. Programming is all about thinking, and if you can think this, believe me, you should do a wonderful job understanding programming. Are you very clear? See, मैं हर बार बोलता हूँ ना, many times when get called as a chief guest or as a spokesperson or as a motivational speaker, especially technology related, मैं सबको बोलता हूँ टेक्नोलॉजी और तुम लोग का एक प्रॉब्लम. तुम लोग टेक्नोलॉजी और लाइफ को अलग अलग क्यों पकड़ते हो? मैं मेरे किसी भी सब्जेक्ट में आई बीन टीचिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, एथिकल हैकिंग एंड सो मेनी स्टफ. मैं हर एक बार एक ही बोलता हूँ, व्हाई डू वी कीप लाइफ एंड लर्निंग डिफरेंट? ये दोनों इक्वल है. तुम लोग प्रोग्रामिंग को प्रोग्रामिंग समझ के सीख रहे हो, लैंग्वेज समझ के सीखो. लैंग्वेज बोलने के लिए यूज करते हो. जिस तरह से बोलना आसान है क्योंकि तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या अचीव करना है, उसी तरह से लैंग्वेज है. If you know how to calculate something, you know how to work with it, you know how to take input. इसके बाद क्या होगा? Syntax change होगा. That's it. Nothing beyond that. So जिस दिन इस तरह से तुम inline आ पाओगे तुम्हारे studies के साथ, believe me, you will rocket up to your career and your growth. No, second thing, एक चीज याद रखना, career में कभी भी आगे जाओ. When it doesn't feel right inside, you'll never be able to successfully do anything. I'm somebody who has quit some of the best jobs just because
मजा नहीं आ रहा था. And I remember my dad being the biggest supporter, like, you left that package for this? मुझे बोर होता था. वो कंपनी बोलता था इसी का ना. I remember Microsoft always had a issue. नहीं ये ऐसे ही है, यही API यूज करने का, यही. भाई वही सालों से करना था तो मेरे को इतना पैसा क्यों दे रहा है, तू ही कर ले. That was my logic. So then moving into research, it was always fun because nothing is defined. Everything is undefined. प्रोग्रामिंग पे आते हैं. चलो तुम लोग को प्रोग्रामिंग का लॉजिक दिखाता हूँ. हमें से बहुत लोग मुझे एक चीज बोलते हैं, नो इस पे अगर डिटेल 20 मिनट का वीडियो चाहिए तो यू कैन फायर इट ऑन यूट्यूब. अमरपंचल एजुकेशन थिंक कोडिंग नाम का एक वीडियो डाला है मैंने. यू कैन गो थ्रू. द बेसिक पर्पस ऑफ अस नॉट टू कोड और नॉट टू अंडरस्टैंड कोडिंग, वी डोंट फॉलो दिस. हम लोग को आदत पड़ गया रट्टा मारने का. इनपुट ये आएगा, एक प्रोसेस ये आएगा तो आउटपुट ये आएगा. लाइफ डजंट वर्क दैट वे माय डियर. फर्स्ट थिंग, स्टेप 1, व्हाट ऑब्जेक्टिव यू वांट टू अचीव. क्योंकि जिस दिन ये क्लियर हुआ, यार वन ऑफ द स्टूडेंट हैड आस्क्ड द क्वेश्चन, सर ये है. मैंने उसको बोला तुझे क्वेश्चन समझा है क्या? बिकॉज जब तक क्वेश्चन ही नहीं समझा मेरे दोस्त, एक गड़बड़ होगा. हाउ वुड यू नो इवन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट? ऑब्जेक्टिव जिस दिन समझ गया, इमीडिएटली प्रोसेस समझ ही जाओगे किसी भी कोड का. और प्रोसेस में ही छुपा है कि तुम लोग को क्या यूजर से चाहिए, and you work with it. So next time when any program comes across, na, try to follow this. Try to follow this. This is important. Okay. Chalo, bahut प्रवचन हो गया. Coming back to my work. So when you say object-oriented programming, when I say object-oriented programming, oops coming into picture. बड़ा picture देखते हैं, बड़ा logic देखते हैं. A बड़ा picture, बड़ा logic to work with, बड़ा picture, बड़ा logic to operate with. क्या है? Oops. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम. अब ये oops के 6 पिलर्स हैं. Now let me put each of the pillar and then talk. 4 पिलर्स का तो बात कर लेते हैं. सेकंड 2 तो इम्प्लीमेंटेशन पिलर्स है. तो उसमें आता है एक एक. डेटा एनकैप्सुलेशन. डेटा encapsulation, data abstraction, inheritance, polymorphism. Data encapsulation, abstraction, inheritance and polymorphism. ये 4 चीजों पे हम लोग बात करें. ये 4 चीजों पे हम लोग कॉन्सेप्ट पे बात करें. क्या, क्यों, कैसे, किस तरह से, कहाँ से हम लोग ऑपरेट करेंगे. So if you try the bigger picture, if you try to understand the bigger picture, data encapsulation, abstraction, inheritance, polymorphism. एक समझते हैं. I hope people are aware of it, but I'm not considering. I'm trying from scratch. Encapsulation is process of combining data along with operation on data. Encapsulation. You realize it's a concept of what capsule, जिसमें सारी चीजें तुमने एक कर, एक हिस्सा इसमें डेटा है, एक हिस्सा इसमें ऑपरेशंस है, और तुम सब कुछ. Okay. So example technically would be buying a laptop. And you get cover, bag, mouse, antivirus, etc. free. कॉन्सेप्ट समझ रहे? तुमने क्या खरीदा? लैपटॉप. अब लैपटॉप कैसे ऐसे पकड़ा था तुम, ये लो भाई ये तुम्हारा लैपटॉप लेके? नहीं, ऑब्वियसली नॉट. सो नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स इज वेरी वेरी सिंपल. हम लोग बोलेंगे नहीं यार ऐसे थोड़ी करते हैं, हमारे वो बैग देता है. अच्छा, चार्जर मिलेगा ऑब्वियसली. अच्छा, फिर लैपटॉप के साथ देयर आर थिंग्स लाइक बैग्स कमिंग इनटू पिक्चर, एंटीवायरस कमिंग इनटू पिक्चर. ये दे दिया तुमको. क्यों? दैट्स एनकैप्सुलेशन. तुमको सिर्फ डेटा नहीं दिया, तुमको डेटा के साथ ऑपरेट होने वाला चीज भी दिया.
अच्छा, consider example of a Swiggy delivery, or consider example, what's the difference between vada pav and burger? Indian burger can be called as vada pav. Okay. Yesterday I tried and it was pathetic, called Jumbo King Indian burger. मत खाना, थर्ड ग्रेड है. मॉम डैड मैं 3 मंगवाए थे, तीनों एक दूसरे का चेहरा देखते. तेरा अच्छा है. Finally dropped it and we have to reorder something else for eating. But the phenomena छोड़ दो, बाद में उसके मार्केटिंग की वजह से. But the logic is simple. अब उसने क्या किया था? बर्गर और वड़ा पाव में क्या फर्क है? जरा कॉन्सेप्ट होगा, वो दैट्स एनकैप्सुलेशन एंड प्रॉमिस यू आई विल प्रूव इट. क्यों? वड़ा पाव जाके दुकान पे मांगो, वो कैसे देता है? चलेगा, पाव फाड़ेगा, चटनी डालेगा, वड़ा डालेगा और हाथ में पकड़ेगा. इट वाज हैंड टू हैंड डिलीवरी. वी आर हैप्पी विद इट. नो गुड. नाउ लेट्स गो टू मैकडीज. मैकडीज आर अ डिफरेंट वे ऑफ गिविंग. अब मैकडीज वाला क्या करेगा? एक बर्गर भी मांगेगा तो बंदा पता नहीं क्यों हंसेगा ऐसे, बाद में पेपर पे डालेगा, वो एग्जैक्टली बटर पेपर में ऐसे सेंटर में रखे. सिर्फ बर्गर मांगा था तुमने, वो बर्गर नहीं देगा, बर्गर के साथ टिश्यू देगा, केचप देगा, ट्रे में रख के देगा और हंस के आपको बोलेगा यस सर योर ऑर्डर. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स. द डेटा वाज बर्गर, बट व्हाट वाज गिवन अलोंग विद डेटा वाज मोर इंपॉर्टेंट. सर मतलब अच्छा, केचप मांगा था क्या? दिया ना. मे बी यू वांट टू मेक इट मोर टैंगी, ले ले. अब बर्गर खाएगा, हाथ बिगड़ेगा, मुंह बिगड़ेगा, क्या करेगा? दूसरे के शर्ट या नो कमीज को नहीं करेगा. नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं, टिश्यू ले भाई, हाथ गंदे होंगे तो. अच्छा, 10-15 रुपए का चीज तुम लोग 40-50 में खरीद रहे हो, एसी तो एंजॉय करोगे, तो ऐसे हाथ में लेके जाओगे, कितना अजीब लगेगा. तो बेटर है ट्रे ले लो. व्हाट आस्क्ड एंड व्हाट वाज गिवन. अब सोचो एनकैप्सुलेशन क्या है. मैं सिर्फ डेटा नहीं दूंगा तुम, मैं डेटा के साथ होने वाले सारे ऑपरेशन, यानी कि जो भी तुम्हें चाहिए वो सब भी दूंगा. हम लोग ऐसे ही तो बेचते चीज. Why the package comes into picture? Why the package works into encapsulation is the process of combining data along with operation on data. Super. Okay. Data abstraction. अब वो बात किया जाए तो this is pretty important way to hide complexity of accessing and storing data and providing simple access is called data abstraction. So in a way I can say this way, हम लोग कैसे करते? Data hidden रखते, operation ओपन रखते हैं. और अब डेटा को कभी भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाओगे. एज अ यूजर will access operation, they will internally access data and they will give some answer and it will get to the user. तो यूजर के लिए kept hidden. Access is only given to the operation or functions, to be very very good. So operations are open. The way I'm going to store data, process data, work with the data, क्या करेगा बोल, मतलब क्या फायदा, क्या होगा बोल के क्या करूं, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन. तो भाई हमने बोला भाई अपने को नहीं चाहिए, रहने दो. एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ वी आर गोना वर्क विद, हाउ वी आर वर्क. सो दिस इज एब्स्ट्रैक्शन. We do deal with abstraction most of the time. For example, this is one of my favorite way of explaining abstraction. Just give me a second. Okay. Just a minute. I'm getting to what I intend to. Okay. Job done. Let me put it this way. People taking you somewhere. Don't worry. इसमें ना मेरा sponsorship है ना मैं देने वाला हूँ. Just example. So सुबह सर क्या यार पिज़्ज़ा नहीं, ठीक है एग्जाम्पल है, can't help it. तो मैंने एक भाई पिज़्ज़ा क्लिक किया. वेज नॉन वेज के लफड़े में नहीं पड़ता तो वेज ही लेते. चलो
मे बी मैक्सिमम ग्रीन वे। अब मैंने क्लिक करने पे मुझे ये मालूम पड़ा पिज्जा लोडेड विथ crunchy onion, crispy capsicum, juicy tomatoes, alpinos, and liberal sprinkle of exotic Mexican herbs. मतलब सर क्या कर रहे हो सुबह सुबह मार्केटिंग? नहीं, they have given enough information, right? They have given you what pizza would have. But can I tell you this way? Have they given you information how this is being made? That's her fine. We'll be taking a dough. We're making a around 6 inch of circle of it. Then we'll be first putting a layer of cheese and then on. बोले ये भाई खाने का मेरे को पकाने का नहीं है, मेरे को फालतू information नहीं दे. Now think that, come back to this abstraction. Way to hide complexity of accessing and storing data and providing simple access. बोल रहा तुम लोग जब पूछते हो, this happens with me most of the time, no? I'm a foodie person. I like experimenting with my food. Anything new in menu is I'll be jumping on. बहुत बार मुसीबत में पड़ता हूँ, बहुत बार पोपट होता है, बहुत बार नो. सबसे बड़ा मेरा पोपट किया था ताज ने. उस दिन ताज मेरा आदत है अगर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग्स मेरे होते हैं और बोर हो जाता हूँ तो मैं 1-2 दिन का खुद का वैकेशन स्टेकेशन जैसे आजकल जो फिनोमेना हम लोग बोलते हैं दैट आई हैव बीन डूइंग फ्रॉम इयर्स नाउ. तो मैं घर पे बोलता भाई 1-2 दिन आराम करने जा रहा हूँ. बहुत बार उनको भी पकड़ के लेके जाता हूँ या तो मैं अकेला. I'll any hotel which I want, big property, I'll go rest. कुछ नहीं. तो one of that staycation was Taj went. बोला अरे हर बार का ये नॉर्मल खा के कंटाल गया, कुछ नया लेके. अब I was going through the menu, ब्रेकफास्ट में आइटम में लिखा था एग आकुरी. बोला माँ कसम कुछ नया है यार, कभी सुना नहीं है, ये ताज में कुछ तो नया होगा. मैंने मस्त फोन उठाया, बोला एग आकुरी, मेक इट स्पाइसी. बोलता यस सर डन. I was more and so Taj gives it in a very बड़ा plate वैसे ढक्कन लग के sir yeah. I was excited. मतलब I love कुछ नया. खोलने के बाद that was a big disappointment. मुझे एक तो भुर्जी पाव दिया यार इसने. I mean I called up, बोले what you have said? बोले sir that's egg akuri. अब मैंने जाके नेट पे सर्च किया, बोला पहले लिखता था भुर्जी पाव नहीं मंगवाता था, ये तो बचपन से खा रहा है. ना तो लॉजिक रिमेन इज सिंपल. देखिए the way they have described it, that was very interesting. Mixed with herbs, onion, capsicum, this, that, and egg. कुछ तो अच्छा होगा. But that is the point. Do you want to get all that information? No. Do I want to opt it onto? Yes. तो मुझे इन दोनों के बीच में रखना है. That's the bullseye which we are talking about. Data abstraction means hiding complexity. Don't give it to user. You know, I always tell people when somebody asks you, ये मैं बहुत बार जब train करता है, you know, as a part of my profession and my profile, we do something which we call as a life coaching. तो मैं बहुत बार बोलता हूँ, if somebody asks you how is life, never give problems of life because people are not going to share your problem. Always give the positive. कुछ तो अच्छा होगा और उसको लाइफ के बारे में अच्छा बोलने के चक्कर में you will feel good. All good यार, career is going in a best thing. Things are happening nicely. Things are being done. अरे अब आगे ये है. Don't no वो रोना चालू मत करो यार, मेरा पर्सनल लाइफ बिगड़ा हुआ है रे. बहुत अरे क्या फर्क पड़ता है उसको, वो एट द मोस्ट क्या होगा. लेट्स बी ऑनेस्ट टू अवरसेल्फ. अगर कोई तुम्हारा बहुत क्लोज भी है, ही इज गोइंग थ्रू टफ टाइम टू प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ, टू बेस्ट व्हाट यू कैन पैट हिज बैक, कम ऑन, हो जाएगा रे, टेंशन मत ले. ये सुनने के लिए तुम लोग आधा घंटा रो रहे हो उसके सामने, वो भी नो. एंड दिस इज अ नॉर्मल ह्यूमन नेचर. वी डोंट फील दिस बट दिस इज एक्चुअली हैपेंस विद अस. सो मेक इट अ पॉइंट, यू डोंट डू इट टू एनीबॉडी. जब तुम सैड हो ना, तुम वो सैडनेस स्प्रेड करते हो. बिलीव मी, दिस हैपेंस. It happens. Like I remember there was time when no हम लोग का group गया था. Now each one are looking at the same thing. हम लोग we were at Gateway. I'm somebody who is a night no crawler who would move around at night probably because 10-10:30 को तो मेरे lectures खत्म होके मैं free होता हूँ. बाद में मेरा मूड होता है, बाद में I have blessed with a small group जहाँ पे हेलो निकलता है क्या. And these people are 2 लॉयर है, एक पुलिस में है, 2 इंजीनियर्स है. तो इट्स अ गुड ग्रुप. अब जब हम लोग गेटवे पे खड़े हैं, नाउ दिस इज हाउ ह्यूमन वर्क्स. एब्स्ट्रैक्शन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. व्हाई आई एम लुकिंग एट वाटर, बोला हवा ही नहीं यार, गर्म हो रहा है. दैट्स माय रीडिंग ऑफ सिचुएशन. द अनदर गाय इज लाइक हु इज गोइंग थ्रू टफ टाइम, पानी भी कितना काला है देख, वो भी उछल उछल के बोल रहा है कि दुनिया कैसी है. एंड वी ऑल आर लुकिंग. सुन फिलोसॉफी निकल रहा है डॉक्टर साहब का. बोलो क्या हुआ, वाटर इज ब्लैक.
जस्ट फॉर रेफरेंस अंधेरा है रे, उसके अंदर हेलोजन नहीं डाला किसी ने, वो तेरे को ऐसे ही दिखेगा. दैट इज हाउ थिंग्स आर एब्स्ट्रैक्शन. Why you want to give unnecessary complexity of data? Just give the information. मम्मी को तुम लोग बोलते हो मम्मी ये खाने का है, डन ना, यू आर डन, दैट्स ऑपरेशन. आर यू कंसर्न? नो. जैसे कि अभी मैंने सुबह मम्मी का सर खाया, जनरली दैट काफी फॉलो कर रहा हूँ फिलहाल. तो नो, मैं मम्मी को बोला मम्मी शीरा बना. दैट वाज एंड ऑफ द स्टोरी. शी वाज लाइक खाओगे आप? बोला थोड़ा बनाना, ज्यादा मत बनाना, बट बनाओ. एम आई सपोज टू गेट इनटू रवा है क्या? रवा वो तूप है डालने के लिए, चम्मच है हिलाने के लिए, कढ़ाई है, गैस है, शक्कर है. मम्मी चप्पल मार के निकालती थी मेरे को. And that's exactly what user would do to you if you give more information than needed. बहुत बार होता है. This is something pissing off in a restaurant. You go to a restaurant, big restaurant, आजकल अजीब तरह से रखते थे. चलो भाई पानी देना. सब बिस्लरी वाटर, हिमालयन वाटर और what? बिस्लरी. सर कोल्ड, रूम टेम्परेचर, आइस. बोले भाई प्यास से जान जा रही है, कुछ भी लाके दे मेरे को चलेगा. Then that's the exact logic. Data abstraction. Be careful. बात करते हैं स्टेज 2 का, इनहेरिटेंस. अब इनहेरिटेंस का जब बात करते हो, व्हाट इज दिस? दैट इज अबिलिटी टू डिराइव प्रॉपर्टीज ऑफ प्री एग्जिस्टिंग टू क्रिएट न्यू. आप, मैं, हम लोग सब inheritance का नतीजा. I mean, don't get me wrong, but that's exactly what is actual fact about it. For example, किसी को पकड़ते हैं, Anushka, and then she is seen on screen. Can you unmute yourself? Yes, sir. Very good morning, my dear. Who are you by religion? Hindu, Marathi, Sikh, Isai, कौन हो आप? Hindu. क्यों? Okay, हिंदी, मराठी, कौन सा मदर टंग है आपका? Marathi. क्यों? It's from ages. Thank you. Sorry to trouble you, but that's the exact inheritances. अब कोई मेरे को पकड़ के बोले तू गुजराती क्यों है? अबे क्यों है मतलब माँ बाप गुजराती थे, उन्होंने बोला तू गुजराती में पैदा, तू गुजराती है. That's exactly might be getting in her head also. वो भी सोच रहे हो अरे पर क्या बोला मैं मराठी को, फालतू क्वेश्चन है. माँ बाप मराठी, उन्होंने बोला तू मराठी है. Forget it. Even the God which you believe in has been inherited, to be very precise. हम लोग में नो टुवर्ड्स गुजराती, वी बिलोंग टू कम्युनिटी जो ज्यादातर माताजियों में विश्वास करता है. तो आइडियली वी वर्शिप लॉर्ड अंबा, व्हिच इज अ गॉडेस. फाइन. क्यों? आई मीन मजा आता है नो द वे पीपल कन्वर्स. तेरे घर पे गणपति आते हैं? नहीं. मैंने तेरे घर पे आते हैं? नहीं. तो दूसरा, तू तो मराठी है, तेरे घर पे गणपति नहीं है. तो गणपति मराठियों का देवता नहीं है, हिंदुओं का देवता है. गुजराती, सिंधी जिसको लाना ला सकता है रे. नाही पण मराठीत आणतात असं मी बघितलं. म्हणून छोड़ ना भाई, काय को रिलीजन में घुसता है. बट दैट्स इनहेरिटेंस. मुझे बोला जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड यू नो देयर वर सेमिनार्स जहाँ पे मैं बात में बोल देता हूँ, मैं नॉलेज खाता, एंड पीपल हैव केम फॉरवर्ड एंड टोल्ड मी सर यू गुजराती, यू शुड बी हैविंग सात्विक आहार, यू शुड नॉट बी हैविंग नॉनवेज. राइट. मैं किसी को इंसल्ट नहीं करता, बोला यस आई विल श्योर ट्राई. मन में बोलते हैं यार अभी तो खैर डाइट चेंज हुआ है तो काफी हद तक नो बैलेंस डाइट है. बट एक जमाने पे मेरी माँ अगर मेरा वेज ऐसे थाली में रखते ना, मुझे मैं तेरे को घोड़ा दिख रहा है, बकरा दिख रहा है, घास फूस कौन खाएगा? अब ठीक है, द लॉजिक इज सिंपल. इनहेरिटेंस, यू इनहेरिट सर्टेन एबिलिटी. तो यहाँ पे एक चीज प्लीज याद रखना, यू विल हैव टू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, ओल्ड प्लस न्यू. These are own and these are inherited. Together, you created something. अब मेरा सरनेम पंचाल है, fine. I can't help it, whether I like it or hate it. That's what my surname is. You can't help it. I have a Sindhi, I have Parsi friends, and luckily, I mean, माँ बाप ने क्या शादी करवाया इन लोग का? That is a दारू वाला getting married to glass वाला. मोला बस एक बर्फ वाला और सोडा वाला ढूंढ ले, माँ कसम पूरा बार फैमिली रेडी हो जाएगा तुम लोग का. नाउ दैट्स लॉजिक. इनहेरिटेड, कैन यू चेंज इट?
Like I remember my mom initially, मुझे आदत था, just wanted to know culture and all. So I have been through Bible, I have been through Gita, I have been through Quran, I have been through Guru Granth Sahib. पढ़ा है काफी. तो जब कुरान लेके आया ना मैं मम्मा, क्यों लाया? What is wrong with that? ठीक है, रिस्पेक्टफुली रखो, बट क्यों? आई मीन, एक तो मेरा बात, सिंस आई राइट शायरी, तो उर्दू पढ़ना मेरा काफी है, तो मेरा बहुत बार टोन्स में या बोलने में वो निकल आता है. तो लॉजिक होता है, दैट्स इनहेरिटेंस. माय पेरेंट्स हैज सर्टेन थिंग्स व्हिच इनहेरिटेड, दैट्स लाइक मेरा कल्चर हो गया, मेरा लैंग्वेज हो गया, मेरा मदर टंग हो गया, बट आई हैव माय ओन वेज आल्सो. So remember, inheritance does not mean making an exact copy. It's making a reference-based copy जहाँ पे आपके पास old data भी है, नया डेटा भी है, दोनों कंबाइन करके क्रिएटेड भी है. सो यू आर क्रिएटेड गुड बाय सर्टेन ओल्ड सर्टेन न्यू. खुद अपने अपने बारे में सोचो. तुम्हारा कलर, तुम्हारा लैंग्वेज, तुम्हारा बेसिक नो फेस कट कॉपी नहीं है, रेफरेंस है. मतलब देख के बोल सकते हैं इसका भाई है, इसकी बहन है, या इसका बेटा है, इसका सो एंड सो. आर यू एग्जैक्ट कॉपी? हो सिर्फ एकता कपूर में होता है कि बाप मरता है, बेटा एग्जैक्ट उसका कॉपी बन के वापस आता है. So that happens, but otherwise I haven't seen, unless you are twins, who be no identical twins. Now go to polymorphism. We all do this polymorphism. हम लोग पहले बोल चुके हैं इसके बारे में, याद होगा तो. Ability to exist in multiple forms is called polymorphism. As per the need overloading is one form of polymorphism which we have. Operators. Again, अब तुम लोग को इंटरव्यू में बैंड कहाँ बजाते हैं? कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन पाइथन? याद रखना, बेस्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी. सर आंसर तो बोलो. दैट इज आंसर. एनीबडी कैन टेल मी व्हाई प्लस इज पॉलीमॉर्फिक? प्लस को दो नंबर दिए तो उन्हें ऐड करके टोटल देगा, बट दो स्ट्रिंग दिया तो क्या करेगा? एनीबडी कुड रिलेट दैट टू मी? Concat. Perfect. Another operator, if you remember, Multiply. स्पेसिस को multiply. परफेक्ट. स्ट्रिंग को रिपीट करेगा बट नंबर को मल्टीप्लाई करेगा. So this is four basic pillars of OOPS coming into picture, giving or making bigger waves, bigger things. This is what we are talking about. This is what we are going with. So OOPS का शुभारंभ अब होता है. That is what we are working with. This is what we are operating on. So this is stage which we are working with. This is the operations which we are working. So be very, very careful. Clear? Everybody clear? Any doubt? Any query? Anyone? फंडा समझा पूरा? Okay. So ये OOPS के pillars है. उस पे तुम्हारा काम होता है, उस पे तुम्हारा operation होता है. This is stage 1. Stage 2. भाई इसे implement कौन करता है? Class and object. Basically class and object implements this thing. क्या, क्यों, कैसे, किस तरह से, कैसे ऑपरेट होता है, किस तरह से वर्क करते हो, वो आगे का बात अब करेंगे. सो व्हेन यू टॉक अबाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट, विल बी गोइंग इन डेप्थ फॉर देम एंड देन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कंस्ट्रक्ट. इसका तरीका काफी अलग है, पाइथन का तरीका काफी अलग है. जस्ट बिफोर दैट, गिविंग यू अ स्मॉल 10 minutes break. It's 25 in my watch. 35 will start. Quick bio break, refresh and rejoin. Meanwhile, ये ऑन छोड़ के जा रहा हूँ. So if somebody wants to copy, because एक दो जन ने लिखा है सर कॉपी करना है, कर लो. 10 minutes after this we will start. So that is 9:35. I'll be starting. Thank you guys.
Thank you. So now, after understanding how the concept worked for us, let us try to work on the next thing, जिसे हम लोग कहते हैं class and objects. अब 6 pillars में से 4 pillars तो हम लोग ने बोल दिए, तो इस चीज को थोड़ा अलग लेवल पे लेके when you tend to talk about on a level of understanding the concept, pillars 6 में से 4 are the basic property and remaining 2 are how we are going to implement this property. So अब हम लोग बात करते हैं, be very careful. We'll be working with class and object. I'll give you time to copy this. अलग से 5 मिनट दे दूंगा, सिर्फ पहले समझो. अब the most common problematic thing, class and object. इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मजा आता है हम लोग को जब हम लोग पूछते हैं what do you mean by object? सर इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. इतने ही बड़े स्माइल के साथ एक आंसर रहता है और रटा आंसर. Do you really understand what you mean by instance of a class, or do you understand what object is? Class is virtual. This is physical. Okay. So, sir, I can say it is virtual idea. It's a basically virtual idea or a concept. This is physical implementation. Physical implementation. Okay. Then, as we work with class, virtual idea, physical implementation, going one step further. अब अगर मैं बात करूं क्लास के, क्लास क्या बोलते हैं? It's a framework. एक फ्रेमवर्क देता है. This is realization of framework. Has properties. Has values. Has various operations. Has now this might not make much sense as of now. Because obvious question है कि हो क्या है? I mean, what are we talking about? What exactly we are working with? So let me help you. Anybody can tell me ये किस entity का sketch बनाने का try करो? What entity this might be? Human being. Human. Human. Thank you. So मैंने एक framework ready किया इंसान. एक virtual idea. 2 हाथ 2 2 हाथ 2 पाँव. So 2 हाथ 2 पाँव एक सर. Generally इंसान ऐसे ही होता है. So that's a human. तो मैंने जो किया that's a virtual idea. Okay, ठीक है. Framework. कि सर जैसे कि मैंने ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, मैंने सिर्फ तुम लोग को एक बेसिक डायग्राम दिया. ये भी कोई बड़ा मॉडर्न आर्ट नहीं है. It's a very basic thing and you can immediately say, sir, इंसान because the framework was very clear. अब हम लोग सबका अगर बात करें physical implementation, realization of framework, अगर actual में now this is just an example, nothing against anybody, nothing against any concept. कोई ऐसा दिखता होगा? Somebody might be looking this. But all would be following certain concepts. The framework. I mean, no, Hrithik Roshan. What is the speciality of Hrithik Roshan? Anybody can tell me? Fixed finger. Fixed finger. Wahi. I mean, this is the most interesting thing. The psychological factor. He's a good dancer, handsome person, good eyes. नहीं, सच है only. This is what framework के against है. हम लोग को आदत है ना 5 उंगलियों के साथ. Means his math should be better. We can count till 10. He can count till 11. So the logic is very simple. Framework. Human was a framework. एक virtual concept जिसे तुम लोग realize करते हो अलग-अलग. आप, मैं, हम लोग सब object है which belongs to the class human. Why?
हाथ, ऑपरेशंस, अपना लुक, फील, फ्रेमवर्क। हम लोग सब अलग अलग दिखते हैं, बराबर। ऐसे हम लोग सब साथ में एक साथ चले तो नहीं बोलते अरे देख बहुत सारे राहुल एक साथ आ रहे हैं, या बहुत सारे अमर एक साथ आ रहे हैं, बहुत सारे टिंकल्स एक साथ आ रहे हैं। नो, इट वुड प्रैक्टिकली से अरे वो देख अमर, वो देख राहुल, वो देख टिंकर, वो देख लोकेश। बट डोंट यू थिंक हम लोग चलेंगे पाँव पे? आई मीन दैट्स हाउ ह्यूमन शुड वॉक. So what is making it different is the implementation which we talk about, and implementation is a realization of the framework which we give. First concept दिमाग में clear करो. Second, sir has property. भाई इंसान को नाम होगा, इंसान को जेंडर होगा, इंसान को हाइट होगा, इंसान को वेट, ये तो सर पक्का है होगा. अच्छा क्या होगा बोलो? एनीबडी कैन आंसर, क्या होगा? अब आधे लोग चुप है, बोले मतलब सर किसका पूछ रहे हो? मेरा पूछ रहे हो तो मैं मेरा डिटेल्स दे सकता हूँ, आप किसी और का पूछ रहे हो तो अब मैं बात करता हूँ. लेट्स हेल्प मी आउट विद दैट पीपल. कंसीडर ह्यूमन के दो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, H1 H2. H1 चलो मेरा बना देता हूँ, तो नाम अमर, जेंडर मेल, in terms of height 6.3 inches, in terms of weight 121 kg. Okay, ये मेरा डिटेल. Now let's pick up anyone from it. जय सागर, दोस्त मदद कर. Yes, sir. जय वो तो लिख दिया, मेल वो भी लिख दिया. चल आगे का दो डिटेल्स दे दे. 5.4, 5.4, 78. perfect दोस्त, good. So now you understood one thing. ये सिर्फ मेरा और जय का डिटेल नहीं है, ये तुम सबके डिटेल में से मेरा और जय का. क्यों? बिकॉज हर एक के पास लेट इट बी योगेश, लेट इट बी लोकेश, लेट इट सर्वेश, एनीबडी हु इज वाचिंग दिस, एवरीबडी इन फैक्ट वाचिंग दिस, इवन मलकीत एंड एवरीबडी, एक चीज श्योर है, आप सबके पास अपना नाम है, आप सबके पास अपना जेंडर है, हाइट एंड वेट वो भी हर एक का है, बट सबका अलग अलग है. अब वो जो गोल्डन स्टेटमेंट तुम लोग ने रट्टा मार के रखा है वो आता है. Object is instance of one of the many implementations. जो इंस्टेंस बोलते हो ना उसका मतलब क्या है? Out of many, one of the implementation of a class is object. This is what you say. This is how you put the bigger picture. जिस दिन ये समझ पाए तो समझो क्लास एंड ऑब्जेक्ट तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो. क्यों? क्लास का बात करें, क्लास हम लोग जिस तरह से डिफाइन करते हैं, जिस तरह से वर्क करते हैं, इट्स वेरी सिंपल. क्लास ऐसा होता है, ऐसा होगा, ऐसा ऑपरेट होगा, मान लिया. पर ये फ्रेमवर्क ही देता है, ये कभी इंप्लीमेंट नहीं करेगा. जो उसे इंप्लीमेंट करेगा वो ऑब्जेक्ट होगा. सो हर ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक क्लास के आइडिया को फॉलो कर. हम लोग ने मानो ना मानो एक रेफरेंस बना के रखे, फ्रेमवर्क्स बना के रखे. एंड नो मैनी पीपल फील आज जब मैं बात करता हूँ या हेल्थ रिलेटेड कुछ बात करता हूँ तो मैनी पीपल से यू अचीव्ड यार, बट 195 to 121 सही है, मतलब better you did for looking well. Looking good, looking bad was never the issue. The issue was वहाँ खड़ा रहना नहीं होता था, चलने नहीं होता था. So that created a problem. Doctor said भाई 6 महीना तेरे पास या तो कर या तो मर, दो ही ऑप्शन है, देख ले क्या कर सकता है. तो I selected the better option. So that was my instance, my way of implementing my class, my way. अब ये करने की बहुत अलग अलग तरीके. When you're overweight now, you will always have one interesting fact. तुम खाते पीते अपने पैसे से हो, बट एडवाइस सब देते हैं. People who are on a plus side, they would understand this thing very carefully. No, और मेरा तो बात ही अलग है. Imagine 6'3" with 194 kg of weight. No, it was a different story. मैं आता था photos. And when people used to joke, people used to look at, people used to make fun. Even I used to enjoy that attention. कि ठीक है, होता है. अभी भी वही होता है, ज्यादा फर्क नहीं है. But now it is all for a good reason. So now when I enter,
फिर the usual stuff starts. The logic is simple. हम लोग ने जो भी चीज डिफाइन की है, right body, who would define a right body? My dad, मेरे डॉक्टर के पास जब आते हैं, we have a family physician, तो वो बोलते हैं, अरे कम हुआ, but I would like to see him ना, like रणबीर कपूर, एकदम lean and मेरा डॉक्टर डैड को हंस के बोलता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर सनी देओल जैसा है, and what you expect him? Impossible है, उसका बोन स्ट्रक्चर ही इतना है, वो पतला भी हो गया, तो मैं डैड को बहुत बार हंस के बोलता हूँ, डैड हाथी कितना भी पतला हो, कुत्ते से बड़ा ही दिखता है, so you don't give me that reason. So that's a framework which I'm following. If you understand, guys, हर एक चीज का एक फ्रेमवर्क होता है. What is a good conversation? Again a framework. सुबह मिलोगे किसी को पहली बार, what greeting or what way you will greet them? People question, what you will tell them? Good morning. Good morning. Good morning. Perfect. अगर दोपहर को 12 बजे के बाद मिलोगे तो Good afternoon. शाम को 6 बजे. Good evening. Good evening. अब मानते हो ये तो एक स्ट्रक्चर था जो सिखाया गया था, वो फ्रेमवर्क था, तुम लोग ने इम्प्लीमेंट करना चालू किया. आई रिमेम्बर मजा आता है, getting parents on a WhatsApp is always a good idea. Why? Because वो फिर हम लोग को गाली नहीं देते कि तुम लोग पूरा दिन क्या करते हो मोबाइल, तो उन लोग अपने अपना पड़ा रहता है. अब जब ये एक तुम्हारा आई एम वेरी श्योर फैमिली ग्रुप भी हो गए, याद है वो ग्रुप जिसमें हम लोग को रहने का कोई रीजन नहीं है, बट रहना पड़ता है बिकॉज इट्स अ कंपल्शन, सो यू आर बीइंग देयर. अब ये जो नए चिन्ने मिन्ने रहते हैं ना, उन लोग अपना व्हाट्सएप का लैंग्वेज ग्रुप में भी डालते हैं. अब बीच में डैड का बर्थडे था, तो मेरे कजिन ने लिखा हैप्पी बर्थडे अंकल हैंड. डैड बोलता है इसने हैप्पी बर्थडे लिखा, समझ में आया, हैंड क्यों लिखा? बोलो हैव अ नाइस डे. कैसे लोग हो तुम लोग, फ्री होते फिर भी एसएमएस सोच सोच के करते हो क्या व्हाट्सएप? छोड़ दे, ये तरीका है. टीटीएलवाई ग्रुप पे आया था कि टीटीएलवाई मम्मी ये देखो कुछ तो मंगवा रही है, मंगवा नहीं रही, वो लिख रही है टॉक टू यू लेटर. Like, can't they stick to English normal? Because this is normal for them. The logic is simple. Okay. Technical rounds, let's make it simple. Interview rounds. What do you mean by class and object? So class is a virtual idea which provides a framework, property and operations. Class is a virtual idea which provides a framework, properties and operations which needs to be implemented by object. Needs to be implemented by object. उस तरफ चले जाते. What do you mean by object in that case? Well, object is an implementation of a class having its own values and methods, which are implementation of class itself. Everybody clear? सर कुछ नहीं समझा, इतना भी बोल लोगे ठीक है सर. ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ क्लास which realizes framework provided by the class has its own values and methods. Okay. ऑब्जेक्ट मैं दोनों का लिख रहे हो तो शांति से मैं बोल रहा हूं, लिख लो. क्लास is a virtual idea. Class is a virtual idea providing framework. Providing framework. Providing framework. Describing properties and operations. Providing framework. Describing properties and operations. Properties and operations. Properties and operations. Properties and operations. Everybody clear? Then object. Physical implementation. Physical implementation.
that realizes or implements. You can say realizes or implements framework provided by the class. 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 And having own values and methods. Having own values and methods. Having own values and methods. People clear? Concept clear हुआ? So this is what we have, this is what we work with, and this is what we use. ये interview में बोलना, believe me, things would make a difference rather than rata answer. This is actually what they expect you to do, and this is actually what you should understand also. अब भैया बहुत हो गया, प्रवचन बहुत हो गया, प्रवचन बंद, अब coding हो गया. How would you design a class in Python? Quite interesting way, because ये काफी अलग है compared to Java, C, C++ or rather Java and C++ से काफी अलग. सर क्या कर सकते? So we say class. First alphabet has to be capital in terms of name. Any name which you want to give, you need to make first alphabet capital. ये thumb rule है, याद रखना. नहीं करोगे तो error नहीं आएगा. But generally it's a rule कि class का नाम का पहला alphabet capital, followed by the code. Followed by the code. Okay, मतलब सर class ऐसा दिखता है. Class ऐसा दिखता है. तो सर इंसान बनाता है क्या? I mean, class इंसान बनाता है? कुछ ही से. So taking you back and working with it. Oh, अभी तक पिज़्ज़ा खुला है. रुको. बंद करते हैं. Let's go over here. Close this, and let's create a new thing. So give me some time. It is just creating a new thing. चल भाई. Okay, so let's go ahead. So now when you talk about, let's make it class इंसान, human. अब क्लास ह्यूमन बनाते ही मुझे उसमें कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए. क्लास ह्यूमन बनाते ही कुछ प्रॉपर्टीज. I'll share the link, don't worry. So the biggest part of Python is quite different. It says अगर तुमको प्रॉपर्टीज चाहिए तो प्रॉपर्टीज would be created through objects and objects would be activated via methods. ऐसे लिखा है. I understand that would not make head or tail understanding to it. Let's make it simple. तुम लोग को जेंडर कब मिला? पैदा हुए तो, मतलब जब क्रिएट हुए तो. That's how we work with. अच्छा, तुम्हें नाम कब मिला? जब सर वो रिचुअल होता है अपने इसमें होता है ना. आई थिंक हर रिलीजन में होता है नामकरण विधि. No, naming ceremony. Good. The logic now is याद रखना that whatever method you are creating will have a reference called self, and anything which you create with self dot would become local, or rather would become property. Okay, सर थोड़ा समझ ले दो. आप बोल रहे हो मेथड होगा, मेथड में सेल्फ कंपल्सरी है, ये लिखना ही पड़ेगा. हाँ, ये एक वेरिएबल है बट इसका होना जरूरी है. कैसे क्या क्यों आगे समझा. और anything self dot property is what you would create. Now this won't make much sense till we get into it. Let's get. अब मैं बोलता हूँ def. सर def मतलब let us understand. ये तो फंक्शन है सर. हाँ,
सेट नेम, अब मैं नाम भेज दूंगा एनेमी। सर वो सेल्फ, हाँ सेल्फ होने वाला। सर सेल्फ क्या है? ओके, टेक्निकली स्पीकिंग सेल्फ इज अ रेफरेंस हु इज कॉलिंग। ओके, नाउ लेट्स मेक इट सिंपल, आई विल से एनेमी। उसी तरह मैं बोलूंगा डेफ सेट जेंडर सेल्फ कोमा जेंडर विद जेंडर विद। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं। मतलब सर सेल्फ 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 क्या है सर? सेल्फ इज अ रेफरेंस हु इज कॉलिंग। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा उल्टा समझते हैं, सेल्फ क्या है? ओके, मैं जिन जिन का नाम लूं उनका काम एक सिंपल है, मुझे उन लोग अपना अपना हाइट बोलेंगे। ओके, मैं जिन जिन का नाम लूं, एवरीबडी बी रेडी। ओके, लेट्स स्क्रॉल ग्रिड पे ला। Okay, so now you guys are on a grid. Thanks. Okay. Navnath, Yes, sir. height. 5.71. Thank you. Barkha. 5'2". Okay. Malkeet Singh. 5'4". Renu. Renu. 5'3". Okay. Thank you guys. Now, sorry for this trouble, but you realize one thing. मैंने जिन जिन का नाम लिया उनका हाइट, राइट? जैसे कि मैंने नवनाथ का लिया, नवनाथ ने अपना हाइट बोला, बरखा का पूछा, बरखा। उसी तरह से जब मैं बोलूं यार अमर, अमर मेरा सेल्फ the reference of object. Okay. Self is a reference of object calling. सर इस चीज को प्रूव कर सकते हैं? मैं इसीलिए तो बैठा हूं। Let me people check the fun. मैं आप लोग के समझने के लिए और एक मेथड भी बना देते। चलो, डेफ इंट्रो सेल्फ चाहिए। अब मैं क्या कहूंगा? I am comma self dot net comma I am a, और जैसे इसके बाद नेम देके जेंडर, जस्ट गिविंग दैट। ठीक है, मतलब सर आप प्रैक्टिकली जेंडर किसका सर, लेकिन whoever the call to self dot gender। अब जरा नीचे जाते हैं, इसको मैं डायग्राम वाइज भी एक्सप्लेन करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सर ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे? h इज इक्वल टू ह्यूमन, ह्यूमन, इसको मैं h1 बोल रहा हूँ। लेट्स गेट वन मोर एंड आई एम प्लेइंग। अब मैं कहता हूँ h1 डॉट। अब मेरे पास ध्यान से देखना, जेंडर है, नेम है, जेंडर है, नेम है। कैन आई डायरेक्टली एक्सेस? अच्छा h1 का जेंडर बोले वो एरर देगा। एरर सेज ह्यूमन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट जेंडर। अरे मतलब जेंडर, और तुम्हारे पास उसका कोई यही नहीं है ना, अभी तक तो तुमने बनाया ही नहीं है। अगर तुमने बनाया नहीं है तो ऑन द व्हाट बेसिस आई एम गोना गिव यू दैट? तो मतलब सर बनाना पड़ेगा, बट डायरेक्ट तो बनाओगे नहीं। I have to say dot set gender, बोलेगा male is what I am passing. Similarly h2 dot set name I am passing। मतलब सर एक मिनट अब जरा समझने दो। आपने h1 का जेंडर बनाया और h2 को नाम दिया, हाँ, तो अगर अब मैं देखूं h2 डॉट, जरा मजा देखो, मैं h2 का नाम पूछूं तो मेरे पास है, h2 का नाम पूछूं तो मेरे पास है अमर। मेक सेंस? हाँ अमर तो है भाई, सिंपल है, गुड।
H1 का नाम पूछे तो बोलेगा एरर, आई डोंट नो भाई, तूने दिया ही नहीं अभी तक। उल्टा जेंडर, H1 का जेंडर तुमने बनाया, बट H2 का जेंडर अभी तक तुमने क्लियरली डिफाइन नहीं किया, बनाया नहीं है, तो बोलेगा नो एट्रीब्यूट फॉर्म। ठीक है, मतलब सर बनाना पड़ेगा। सर अभी भी सेल्फ का एक क्वेश्चन का आंसर दो, देता हूं उससे पहले। H1 डॉट सेट जेंडर, H1, हाँ उसका नाम बाकी है, सॉरी। फिर से अतुल, H2 का जेंडर बाकी है भाई। सो वर्किंग विथ, अब अगर मैं इंट्रो दूं, मेरे पास दोनों है ना, तो आई कैन कॉल इंट्रो डायरेक्टली। तो H1 डॉट इंट्रो रन करते हैं। हाय अतुल मेल, H2 डॉट इंट्रो अमर मेल। मतलब ठीक है, मतलब दो दो अपडेट आ गए। बट सर अभी भी सेल्फ इज बिट अनक्लियर। सेल्फ कौन है? H1 H2 आर दी सेल्फ रेफरेंस। सर थोड़ा और, ओके, लेट मी पुट इट दिस वे। मैं इसमें ना चेंज लाता हूँ, इस कोड को थोड़ा चेंज करते हैं एंड वी विल हैव मोर फन। मैं तुम लोग को जब भी ऑपरेट कर रहे हो, सेल्फ कर रहे हो, मैं इसमें और एक डालता हूँ। याद है आईडी नाम का एक कमांड था, आईडी नाम का एक कमांड था, एंड टाइप नाम का भी एक कमांड था। तो टाइप सेल्फ, टाइप आईडी, कॉमा हाई, मैंने वो चेंज कर दिया। सर कशाला? आई हैव अ रीजन। फिर मैं बस ये रन कर रहा हूँ, ये रन कर रहा हूँ। मतलब सर H1 H2 आपने वापस बनाया बराबर। अब जरा मजा देखो, फिर मैं तुम लोग को आगे करेंगे। ओके, क्लास मैन ह्यूमन, क्लास मैन ह्यूमन, दोनों के अपने अपने रेफरेंस है सर। लास्ट के 3 डिजिट 4 डिजिट भी पकड़ू, 1936 1744। सर पॉइंट नहीं समझा, अब समझोगे। मैंने से आईडी ऑफ H1। अब ये सिर्फ तुम लोग का काम है मुझे बोलना, कहीं दिख रहा है ये आईडी ऑन स्क्रीन और कहीं पे? अब समझा सेल्फ क्या? परफेक्ट। किसने कॉल किया? H2 डॉट समथिंग जब बोलते हो तब H2 का रेफरेंस जाता है, H2 का रेफरेंस जाता है। अब यही कॉन्सेप्ट इन अ वेरी सिंपल पॉसिबल वे मैं स्क्रीन पे ला रहा हूँ। आई गिव यू टाइम टू कॉपी ऑल दिस, तो मैं स्क्रीन पे लाऊंगा। पहले जरा कॉन्सेप्ट समझ, पीपल अंडरस्टैंड सेल्फ एंड वर्किंग ऑफ इट। इसके बाद में नहीं समझे देन आस्क डाउट्स, तब तक के लिए जस्ट बी विथ मी, जस्ट बी विथ मी पीपल, वॉच इट केयरफुली। तो सर चलो बनाते हैं क्लास इंसान। मैं बोल रहा हूँ डेफ सेल्फ, पहले बना, सो डेफ सेट नेम बोल देते हैं, सेट एनएमई नेम ब्रैकेट NAME फॉलोड बाय नीचे समझो सेल्फ डॉट NAME इज इक्वल टू NAME। बस मैं अभी इतना ही बना के तुम लोग को समझो। अब जब मैं बोलूंगा लेट्स अंडरस्टैंड दिस वे, H1 is equal to human, H2 is equal to human। ठीक है, कंसिडर H1 बना जिसका रेफरेंस था 1137, H2 बना जिसका रेफरेंस था 213। रेफरेंसेस जैसे एग्जांपल के लिए। नाउ द फन, व्हेन आई से H1 डॉट set, I can say ABC।
अब जरा समझो क्या होगा. People, please pay attention to what is happening. Everybody be with me. Everybody be with me. तो अब होगा क्या वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से समझो. हम लोग टेक्निकली स्पीकिंग, हम लोग लॉजिकली स्पीकिंग, एच ने कॉल किया तो यहाँ पे कहा जाएगा और वहां पे हम लोग को लिखना पड़ता है फिर सेल्फ कॉमन. अब समझा सेल्फ कहाँ गया. तो व्हेन आई से सेल्फ डॉट नेम, ये जो स्पेस h को मिला था ना, h1 को जो मिला था स्पेस जो खाली था, जो कि 1137 है, उसके अंदर में एक सिस्टम बनाऊंगा. ए नाम जो भी बोले, तो अगर एबीसी बोला है तो ए बी और सी. अब मोर इम्पोर्टेंट थिंग टू रियलाइज, later on when I want to print access, I will say h dot net. अपने केस में h1 बोल रहा हूं तो h1 dot net. Another way of saying, everybody clear self का काम किया. Who is calling? अब consider इसमें कहानी में ट्विस्ट दूसरा एक कैरेक्टर को लेके आता है. अब नीचे भी h2 है तो h2 ने बोला set then xyz. Okay, set name xyz, set name xyz. तो जब इसने h2 को सेल्फ में गया, इंटरनली h2 ने मेमोरी बनाया, इसमें नेम डाला, इसमें xyz डाला. When I say h2 dot x y, this is what we are talking about. This is what we are talking about. Clear? Is everybody clear with this? तो हमने देखो जहाँ पे सेट नेम है वहाँ पे हमने दो आर्गुमेंट्स दिखाए जैसे सेल्फ और नेम. तो हमने सेल्फ बाहर क्यों लिया, फिर सेल्फ डॉट सेट नेम क्यों करते हैं फिर हम? सॉरी ये तो हमने अंदर ही है ना दोस्त. हाँ वो अंदर है, तो हम लिखते वक्त ऐसा क्यों लिखे कि h1 डॉट सेट नेम, h1 को हम बाहर क्यों लेते हैं? Okay, let's understand. The framework of set name happens to be with what? Class. But every object h1 h2 is calling it. अब go back to my example. When I say Navnath, Navnath ने height बोला. When I say Barkha, Barkha ने height बोला. When I might give an example, Anushka, Anushka will give height. This is h1 dot set name h2 dot set. मुझे रेफर करना पड़ेगा मैं किसका डेटा ले रहा हूँ. तो वो डेटा जो रेफर कर रहा हूँ, इसीलिए तो सेल्फ आया, क्योंकि तुम किसको रेफर कर रहे हो. If I am pointing my finger, example, your name, your name, your name. The reference, the finger which I am making, it is the self, is the reference who is calling. अब समझा दोस्तों? बट हमने तो पैरेंथेसिस में लिखा है ना सर. तो But हम जब हमने पैरेंथ ये किसका एरिया है? Class. हाँ. It's a framework. Yes. Whoever wants to utilize a class has to be object of it. तो वो मैंने बना दिया. So when I say h dot set name, वो ये framework reuse करेगा. अब reuse करेगा मतलब क्या? वो खुद का कॉपी पे उसे अफेक्ट करेगा. तो खुद का self dot anything is my own copy and it gonna go. इसीलिए ऐसे लिखा जाता है. इसलिए तो सिखा रहा हूँ. Mechanism works this way. Internally जो भी तुम कॉल करो h dot, h का रेफरेंस खुद ब खुद सेल्फ में चला जाएगा. So this is how you follow a framework by the implementation. That's how we work. Clear? Everybody clear with this? Yes, no. I want everybody to comment yes or no. Any doubt? Feel free to ask now. मैं गिन रहा हूँ कितने लोग क्लियर हो. Okay, people go through. Copy कुछ करना है, कुछ पूछना है. Feel free to ask. Side में हो. Meanwhile, do give me yes if you are clear. Any doubt? Do ask the question. Sir, Yeah, go ahead. the calling part, after you assign h1 dot set gender, h1 dot set name, later on, how do you call the intro wala thing?
अगेन ना h1 डॉट इंट्रो, तो जिसको इसका इंट्रो कॉल होगा, इफ यू सी जस्ट अ मिनट गाइस, आई विल गो बैक टू दिस। तो ये समझ, मैंने कॉल भी h2 से किया ना, h1 डॉट इंट्रो, h2 डॉट इंट्रो, एंड हेंस इंट्रो अगेन हैज अ सेल्फ, एंड यू आर प्रिंटिंग सेल्फ का नाम, यू आर प्रिंटिंग सेल्फ का जेंडर, तो whoever calls उसका नाम उसका जेंडर, दैट इज हाउ आई कैन से। क्लियर? So, but I'm getting some. My output is like bound method human dot intro main object at whatever destination it is. Couldn't get that. Come again. I'm not getting the proper output for it. हाँ, तो तूने लिखने में कुछ गड़बड़ किया होगा। रुक, मैं स्क्रीन शेयरिंग देता हूँ। Before Could that, you run- keep the code, कोलैब लिंक ले लो, एंड रुक, तेरे को मैं ऑप्शन देता हूँ ये करने, कुछ तो कोड में गड़बड़ किया होगा। गो अहेड, शूट। This is the output I'm getting. एक मिनट, पहले तेरा कोई तो डेफिनेशन में गड़बड़ है। वेरी गुड, तूने क्या किया देख, सेट नेम सेट, तूने प्रॉपर्टी क्या किया है, जेंडर एंड नेम, दिस आर प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ डॉट, तूने लिखा ही क्या है, डेफ इंट्रो में गड़बड़ किया है ना दोस्त, सेल्फ डॉट नेम हु इज कॉलिंग, सेल्फ डॉट जेंडर हु इज कॉलिंग। Okay. समझा? इसलिए मैंने बोला कुछ तो गड़बड़ किया होगा। Oh. क्लियर दोस्त? Yes, sir. ओके, वन मोर थिंग गाइस, अगर ये दोनों, ये अभी तक किसी ने पूछा नहीं है, अब मैं ही पूछ लेता हूँ भाई, सर इसमें पॉइंट है ना, दोनों तो नाम है मेरे दोस्त, these are local variables। सर मतलब जैसे ये प्रॉपर्टी खत्म, अच्छा तो सर ये सेल्फ डॉट वाला कौन है फिर? अरे बहुत काम का है, सेल्फ डॉट वाला मेरे दोस्त is the instance member। मतलब सर क्या? ऑब्जेक्ट वेरिएबल, इसीलिए सेल्फ डॉट लिखना पड़ता है। सेल्फ डॉट एनीथिंग गोज टू द ऑब्जेक्ट, मेरे में, मेरा, मैं, में, सेल्फ factor। People any doubt, feel free to ask. I'm still again and again saying this. Nishad has created his doubt. Others, go ahead with. Others, go ahead with. Let me also check chat box. Okay. So be very, very careful. Be very, very careful what we are talking about. Sir, Yeah, go repeat ahead. object variable and local variable again. Sorry. Object variable and local variable. Okay. Can you देख, एक repeat सिंपल है again? दोस्त, समझ। h1 डॉट सेट नेम abc भेजा, समझा? अब ये जो abc निकला ना दोस्त, अब यहाँ पे देख, दो चीज में दे रहा हूँ, दिस इज टू एवरीबॉडी, हाँ गाइस, मैं दो चीज दे रहा हूँ, चलिए इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, आई डोंट वांट कंफ्यूजन, एक से ही डील करते हैं। तो h सेल्फ में गया, बट तुमने डेटा भी भेजा था ना, वो इधर। अब तुम भेजे गए डेटा को खुद के अंदर कैसे डालोगे? तो लोकल वेरिएबल गेट्स कॉपीड टू इंस्टेंट वेरिएबल, यानी फिर खुद ब खुद h1 के अंदर नेम नाम का एक प्रॉपर्टी बन जाएगा, जिसका वैल्यू तुमने पास किया है एबीसी, वो हो जाएगा। अब समझा दोस्त? Yes, sir. परफेक्ट। तो एनीथिंग, ये याद रखो, लिख लो कहीं तो, सेल्फ डॉट एनीथिंग इज गोना बी इंस्टेंस मेंबर, इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस फंक्शन, इंस्टेंस डेटा, यानी कि वो हर एक का खुद का होगा। सेल्फ डॉट, बिना सेल्फ डॉट का ये नाम, जैसे ही मेथड खत्म डेटा खत्म, जैसे ही मेथड खत्म डेटा खत्म, जैसे ही मेथड खत्म डेटा खत्म। सर फंक्शन और मेथड में मेजर डिफरेंस क्या हो सकता है, मतलब क्या कह सकते हैं आप उसमें? सॉरी, कम अगेन दोस्त। फंक्शन और मेथड, इन दोनों में डिफरेंस क्या कह सकते हैं आप? No. Function is an open system. Method is always a part of a class. समझा? अगर normal layman's language में कहूँ, function is a function, but if a function is a member of a class, then it is called method. समझा? वो तो कॉन्सेप्ट वो तो क्लियर है, मगर उसमें वर्किंग में कह रहा हूँ मैं।
Working, see, when you call a method, ultimately you are calling a function, but whose? Hence, we are not calling it function. We are calling method. मैंने intro दिया. I'll say that way. I say good morning. You guys reply with good morning. I is my method. So method is a function call which I'm doing. You guys would be replying to your method. So you'll also have a dot operator to that. So any function call with object is not called as a function call, they are called as a method call because you are calling h1 का set name. Intro call करेगा तो h1 का या h2 का intro to call करेगा. Hence the method would totally change. Clear? सर एक और चीज था, जैसे अपन फंक्शन में पैरामीटर्स पास करते हैं और वही चीज अंदर ऑपरेशंस होता है उस पे और वो अपने को आउटपुट रिटर्न करता है। तो सर यहाँ पे मेथड में भी अपन उसकी जगह ऐसा कर सकते हैं क्या, मतलब नीचे अपन मेथड को कॉल कर रहे हैं ना, तो मेथड में अंदर पास किया तो विदाउट सेल्फ तो कितना भी कर, बट वो फिर लोकल होगा, फंक्शन के बाहर ना वो आ सकता है, फंक्शन के बाहर ना उनको अफेक्ट होगा. दैट इज हाउ इट इज. ओके सर, थैंक यू. अगर तुझे वो स्टोर करना है, खुद के अंदर कुछ चेंजेस लाना है, तो यू हैव टू यूज अ सेल्फ डॉट समथिंग, अदरवाइज नो. ओके, थैंक यू सर. ओके, I think method and function में मतलब both are same, just name का difference है. Like सूरज को हम हिंदी में सूरज बोलते हैं, अंग्रेजी में सन बोलते हैं, बट काम तो सेम है ना. नहीं, there is one more difference, दोस्त. Method are always bound to be part of some class. Functions के बारे में मैं नहीं बोल सकता, functions are independent ना. हाँ, बट काम तो सेम ही है ना. हाँ, काम वही है. Ultimately, methods are nothing but functions written in a class. I can agree that. उतना वो जो क्लास में आ गया तो उसका मेथड हो जाता है. बराबर, perfect दोस्त. Clear? Everybody clear with this? Because ये सबसे बड़ा गुगली है. ये हम में से कुछ लोगों ने शायद जावा पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने शायद C++ पढ़ा होगा. उन लोग के क्लास एंड ऑब्जेक्ट के तरीके काफी अलग है कंपेयर टू व्हाट पाइथन हैज. पाइथन में दिस इज वी यूज एज अ कांसेप्ट कॉल्ड एज JIT, जस्ट इन टाइम. मतलब जरूरत पड़ा तभी खड़ा कर, तब तक नहीं. मैं हर बार बोलता हूँ, नो, आई हैव फ्रेंड्स. या गो अहेड. So why that self.name, we are giving self.name ABC, we are giving that value to that operation, right? Right. So after but it has true attribute. By self we are calling h1. Agree. And by name we are taking that name of that which input is given by h1. बराबर. Okay, so this was means I was understanding right or not that. नहीं, बराबर है. h1 सेल्फ में जाएगा और abc नेम में जाएगा. बट नीचे सेल्फ डॉट नेम इज नेम इसलिए हुआ क्योंकि h1 में नेम प्रॉपर्टी मैंने क्रिएट किया और नेम प्रॉपर्टी में मैंने abc स्टोर किया. दैट इज हाउ इट वर्क्स. क्लियर? Yes. Everybody clear with it? self dot name is equal to name में हम जो लोकल वेरिएबल है नेम, उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं ना. कुछ भी रख सकता है, पर जनरली पाइथन प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स बोलता है you won't generally change different things. So self dot, जैसे अपना जावा में this पॉइंटर था ना, this dot property is equal to local property, वैसे हम लोग self को यूज करते हैं इसमें. So for inputting that we are using h1.setName and for extracting the data we are using self.name. Storing that data, हाँ. Clear? Yes, yes. Okay. Everybody crystal clear, because that's the reason if you can understand, मेरा कोई जल्दी में नहीं, मैं आराम से take your time because these are the base जिसके बिना तुम आगे नहीं जा पाओगे. तो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा और बढ़ाते हैं कि भाई इसके दो तरीके हैं कोडिंग के. अब एक क्वेश्चन अभी तक तुम लोग तो बहुत प्यारे हो, किसी ने पूछा नहीं. सर एक मिनट, आप यहाँ से ले रहे हो, पास कर रहे हो, I mean, क्या बचकान हरकत है. डायरेक्टली यहाँ से ले लो ना, आप यहाँ से इनपुट नहीं कर सकते क्या? Nobody says no. You can directly do. No, अनुष्का सिंह, मैं वही सोच रही थी, पूछा नहीं मैंने, नसीब समझ सर. ठीक है, अब मैं कर लेता हूँ, चलो, I'll operate that. So the concept remains very, very simple. You can do this. Number one, it is possible. I'm not saying no, but generally industry talks more on to parameter passing than taking the value. I have to show you that also. तो चलो. तो दिस इज ऑब्जेक्ट टू स्टाइल ऑफ डिजाइन. सर ये तो पहले का ही है ना, उसको मैं चेंज करता हूँ. आई एम नॉट गोना पास एनीथिंग. आई विल से अमर
be smart enough to take data from the user. Input, enter, name. Similarly, अगर ये input आया तो हम लोग ने कौन सा गुना किया है भाई? नीचे आओगे, Control V दोगे, enter gender. And since we are taking it, I'm not going to take it from the user via parameter passing. चलो work करते, play करते. So I say H is equal to human bracket H dot. I will be saying set name, and I'm not going to give it. I'm going to say नहीं यार वो उसको लेने देना अमर, ले लेगा वो छोड़. Amar. And similarly, I'll also say अब जब ये दो दे दिया, चेक भी कर लो. Forget about other two references. You did that job. Hi, I am Amar, male. So I'm not saying this is a wrong coding or this is a wrong structure. I'm just saying there are types. If you want, you can directly take it from the user. You can do. If you want parameter passing, you can again do. Nobody stops you. You are allowed to do both. You are allowed to do both. इसमें से ना कुछ right design है, ना कोई wrong design है. Both are designs. You decide. Your projects would decide. Your company would decide what is better. Sir, ज़्यादा. I would say we still work with 70-30. That is 70% the design one, parameter passing. 30% is now you can directly take and work with it. Okay, clear? Everybody clear with this? Print out any query? People clear? Crystal clear? Sir, data science में classes का कितना use होता है? Minimum. Reason to be very precise is अगर हम लोग बात करें pandas एक internally class ही है, तो we generally import pandas as PD. PD dot anything is ultimately using a method of a class PD and activating that. So yes, you should know the concept of internally working. कि कल उठ के तुम बोलो नहीं, कंपनी बोल सकता है नया फिल्टर बना, तो तुझे नया एक def method बनाना पड़ेगा और PD dot करके उसको कॉल करना पड़ेगा. तो ये फंक्शनैलिटी तुम्हें मालूम होना चाहिए. क्लियर दोस्त? हाँ सर. Okay, but oops के बिना industry बहुत मुश्किल है because we strictly work in terms of class and objects. So we should be ready with that. तो ये सोचना भी मत कि skip करके काम चलेगा. Okay, जितना भी doubt है पूछ ले, I'm there to help. इस करने के लिए नहीं, मैं information के लिए पूछ रहा था कि. Perfectly okay, then it is okay. Because student जब ऐसा पूछता है ना, वो मेरे लिए खतरे का घंटी होता है. कि अरे student जब पूछ रहे वो आगे करेगा नहीं करेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई संभाल. सर और एक दो एग्जांपल लो ना इसके. Sorry. और एग्जांपल लो. Just take a fast recap, sir. Okay, let's do it through coding bench. करते हैं. Just give me a second. Don't worry, मुझे मालूम था इसलिए मुझे UPS का इतना ही मेजॉरिटी टारगेट करना था. मैं इससे ज्यादा करूंगा तो गूगली पे जाएगा. Okay, parallelly, just a minute. I'll do that. I'll reconstruct, but at the same time, let me help you out with something you would love to read. People, oops, notes करके मैंने share किया. Should be visible on Zoom in next second. Okay, आ गया. जरा क्लिक करके ओपन कर लो, देख लो एक बार ओपन हो रहा है क्या? And give me yes. हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Out of all the notes, this is specifically for oops which we create because interview जाने से पहले मैं सबको बोलता है भाई पढ़ के जाना. This should help you off in really understanding a lot of things. तो आज after the lecture, not right now, after the lecture आपका काम होगा एक बार इस पे नजर वालो. It's 13 pages. Believe me, तुम पढ़ने जाओ और पूरा पढ़ना भी नहीं है. पहले 6 pages भी पढ़ लिया तो बस है, बाकी का तो मैं आगे सिखाऊंगा. तो पहले सिर्फ बेसिक समझो. इसमें सब कुछ दिया है मैंने, बट सब कुछ अपने को अभी फिलहाल नहीं करना. Okay, so currently coming back to the story, currently coming back to the logic. Okay, so now
नहीं आया. Okay, हाँ भेज दो. Okay, so now concept working with, object working with, it's very very simple. सारा चीज रिकैप एक प्रैक्टिकल कोड के साथ करते हैं. Okay, people be with me. Feel free at the end to say no, even if you didn't understood. If you understand, the end में मैं एक पोल लूंगा. तब तक के लिए hang on. तो मेरे पास क्लास एक फंडा है जहां पे मैं जो भी बनाऊं उसका पहला अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए. तो मैंने क्लास बनाया. अब उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी है मैं फंक्शंस के थ्रू लेता हूं. तो अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, बोलते हैं कार के लिए क्रिएट कार नाम का एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें जो भी कॉल करेगा उसका रेफरेंस सेल्फ के थ्रू मिलेगा. और अब मैं सेल्फ के थ्रू बहुत सारी अलग अलग चीजें करूंगा. मैन्युफैक्चरर, सो लेट्स पुट मैन. मैं यूजर को ही बोलूंगा, तू ही दे दे भाई. मैन्युफैक्चरर कौन है, दे दे. सेल्फ डॉट टाइप दे दे. Again, I'll work with the input. Okay, so we'll go with that. And similarly, maybe just I'm not putting much into it. Engine. Again. Generally engine 1.5 1.6 ऐसे होते हैं. तो I will cast it to float again. ठीक है. टाइप ऑफ कार नहीं आएगा, टाइप ऑफ engine. चलो, तो दिस इज फर्स्ट स्टेज. ठीक है, क्रिएट कार हो गया. दूसरा मेथड प्रिंट कार. ओके, सो प्रिंट कार का बात कर लेते हैं. और यू कैन से प्रिंट डिटेल ऑल्सो. अगेन सेल्फ मुझे चाहिए होगा बिकॉज जो भी बुलाएगा उसका. अच्छा, प्रिंट self dot I'll be working with manufacturer. Self dot I'll be working with type. Type is keyword. तो मैं उसे टाइप ऑफ कार बता देता है, वरना वो बाद में एरर देगा. Similarly, self dot. Okay, now let's play this. So I created a class which when called create car will create three things: man, manufacturer, type of car, and the engine. I created a method called print car which will print these details back. This is a class. I haven't created any car object as of. This is just the class which we worked with. Step 2. To create object of car, I'll simply say C is equal to car. I successfully created the object, but now I want to create properties inside this object C. The way I would do is call a method called create car, because when called create car, internally it will create three basic properties and give them values also: manufacturer, type of car, and engine. So if I run this, I got, now when I say manufacturer, Hyundai, कार टाइप, चलो नाम दे देता हूँ टाइप की जगह पे सिडान बिडान से है, क्रेटा एक आ गया मैं 1.9. Just an example. Now when I gave this information was stored in C का manufacturer, C का type of car, C का engine. यानी कि C का, the C is stored in a self reference which you passed when you called. So when you say C dot create car, self took reference of C. Whenever I say self dot manufacturer, self dot type of car, self dot engine, I did meant C ka, C dot, C dot, C dot. So now I have all the properties ready with me. Now just to check whether they are still workable,
C dot. Now I'll be working with print car coming into picture and operating in the picture. Hyundai Creta or Cret 1.9. This is the overall concept of a class and object and the way we work with class and object in the functionality. Everybody clear with this? Yes, no, vote. Doubts are most welcome. I'm still there. I'm practically counting, so I would request people to do write yes or no. Doubts, most welcome. You guys can go through. Parallelly ये सेव कर देता हो तो तुम्हारे पास और एक एग्जांपल आ जाएगा. तो somebody has already written earlier, सर और एक एग्जांपल लो. ये वो एक एग्जांपल की तरफ वर्क कर लेगा. I have odd 32 people till now. I'm still waiting. We have 60 people. And everybody to comment yes or no. Think about it. Work about it. देख लो, सोच लो. सर तो वो जो सेल्फ है वो सी का एज अ एड्रेस ले रहा है क्या, ऐसा समझ सकते हैं? यस, तो मैंने क्या समझा था वही तो बोला था बच्चे. h1 डॉट जो बोल रहा है यानी कि सेल्फ, तो वही h1 का रेफरेंस या एड्रेस सेल्फ में जा रहा है. इसीलिए सेल्फ डॉट नेम बोलने पे h में नेम क्रिएट हो रहा है. सिंपल. क्लियर? चलो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट बताइए उसका, वो एग्जांपल. ऑब्जेक्ट वाला पार्ट मतलब कौन सा वर्जन? एच डॉट ऐसा सी डॉट कार. ओके ओके. सी डॉट कार छोड़ दे, तो कार नहीं, हम लोग इंसान के पीछे ही पड़ते. चल टेंशन मत ले. Let's understand people. Giving a one more round for this, especially if you have doubt and if you have any queries. इसके बाद भी again you can free to ask, but again शांति से जरा लॉजिक समझते हैं. ओके, ये मैंने बना के छोड़ दिया. ओके पीपल प्लीज पे अटेंशन. तो जब मैं लिखता हूं ना मेरे दोस्त, जब मैं लिखता हूं let's say h is equal to u, क्या हो एक स्पेस बना, h का रेफरेंस मिला. let's say this is 98212, consider that. okay, एक स्पेस बन गया, एक स्पेस ऑपरेट हुआ. सो अब थोड़ा आगे का बात करते हैं. इस h में अभी क्या है? टेक्निकली स्पीकिंग सर एक ही मेथड है कॉल्ड सेटनेम, और कुछ नहीं है इसके पास, और कुछ नहीं. नाउ व्हेन यू एक्टिवेटेड माय डियर, जब तूने कहा ना आगे जाके h डॉट सेटनेम अमर, व्हाट हैपेंड? h ने अपना रेफरेंस भेजा किसको? क्लास को, कि मैं h हूं. तो ये 9812 गया इधर. सेकंड क्या करूं उसका दूसरा नेक्स्ट क्या भेजा? अमर. अब ये तो टेम्पररी, बट मुझे पहली बात तो अपने अंदर नाम का एक मेथड क्रिएट. so that name is created, self dot name will create this. फिर जो पास किया था अमर वो मैंने स्टोर. तो अमर मैंने स्टोर. दिस इज व्हाट हैपेंड. अब क्लियर हुआ दोस्त? अब हर्षल जस्ट वेट इमीडिएटली हाँ मत बोल. अब कंसिडर आगे जाके हर्षल तुझे भी इच्छा हुई, जो बोला सर मैं H2 बना रहा ह्यूमन. That doesn't mean I'm going to use this. It does mean मैं और एक ऑब्जेक्ट बना देगा और एक मेमोरी बनाएगा. Let's say 1163 तुझे मेमोरी मिला और ये H2 का रेफरेंस है. अब जब H2 बोलेगा ए यार सेट नेम कर, इस बार हर्षल सेट कर. वॉच इट. मतलब H2, तो पहली बात तो तेरा सेल्फ में गया H2 एंड तेरे डेटा में गया दैट इज हर्षल.
तब जाके तेरे अंदर नाम बनेगा और उस नाम को स्टोर करेगा एज हर्षद। एंड सिमिलरली ये तो पहले से था। अब क्लियर हुआ दोस्त? नो सर। इसमें क्या नहीं क्लियर हुआ वो बोलो, देन आई एक्चुअली हर्षद यस क्लियर सर, यस सर, और यस क्लियर सर। पक्का? हाँ वेरी गुड। मोहित कम बैक टू यू, बोल दोस्त क्या नहीं समझा? सर ये सेकंड पार्ट वाला जब आपने नेम को असाइन किया अमर, उसके बाद सेट नेम, फिर S2 वाला वर्ब, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओके एक समझ, पूरी दुनिया में मैं एक ही इंसान हूँ? नहीं, मैं आप सब इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। हर एक के पास, तेरा नाम मोहित है, मेरा नाम अमर है, किसी और का नाम अनुष्का होगा, किसी और का योगेश होगा, किसी और का ट्विंकल होगा, किसी और का मत, ये उनके नाम है। अब उनके नाम में रेफर कैसे करूंगा? जब उनको कोई पूछे तेरा नाम क्या है, इफ somebody consider this my finger as a pointing finger, when I say who are you, अमर, यही मैं तेरे पे घुमा दूं who are you, तो you won't say अमर me भी, नहीं, you are not gonna say, you will say I'm मोहित। ये रेफरेंस है तेरा सेल्फ। तो व्हेन आई से h डॉट सेट नेम एंड हर्षद फायर किया, तभी वो h का एड्रेस यानी कि वो फिंगर सेल्फ में गया। इसका क्या नाम, सेल्फ का नाम हर्षद यानी मेरा नाम मैंने स्टोर किया। दैट इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट। क्लियर? Okay, so self is a reference of object called. Yes, you can say that. Sir? Yeah. So without that name attribute also we can work. In a way, storing, right? जो input Yes. करके self dot name is equal to input करके रख सकता है anytime. No, set names, then bracket self, only self if we put without that name, and self dot name is equal to name. Then it would be object to type ना। तो how would you set? तुझे कुछ तो set करना पड़ेगा ना। If you wanna set blank things, then you can have a null values. देख समझाता हूँ। Now this is the last. Sorry sir. हाँ एक मिनट देख ले। अब यहाँ पे तो मैं सेट कर रहा हूँ ना, मैं वापस इंसान पे जाता है। चलो हम लोग को इंसान शायद ज्यादा समझे, तो मैं इंसान पे जाता हूँ। अब मजा देख। अब तुम लोग को मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये तुम सेट करेगा तभी का तभी सर, बट आई वांट ऑल प्रॉपर्टीज शुड बी क्रिएटेड। तो आई कैन ऑल्सो हैव डेफ, आई से इनिशियल, एक मिनट, इनिशियल्स सेल्फ दे देता हूं। अब इनिशियल्स में एक ही काम करता हूं मैं, देख ब्लैंक ब्लैंक। अब मजा देख, अब जैसे आप बोल रहे हो वैसे मैंने सेल्फ दिया है, बट मैंने क्रिएट कर लिया इंटरनली। तो अब मैं जब किसी का भी h इज इक्वल टू इंसान ह्यूमन बनाऊ, तो एक इंटरेस्टिंग चीज मिलेगा कि उसके पास प्रॉपर्टी तो होंगे बट वैल्यूज नहीं, क्योंकि मैंने तब तक सेट नहीं किया। इफ यू से h डॉट, ये देख, जेंडर नेम इनिशियल इंट्रो सेट जेंडर। अब उसमें भी मजा सोच, मैं इनिशियल करके छोड़ देता हूँ, वेयर आई एम नॉट गोना पास एनीथिंग टू इट, बिकॉज ये इनिशियलाइज करेगा। उसका ही मतलब है h डॉट, इसके बाद इनिशियलाइज के बाद मैं पूछूं जेंडर, तो वो ब्लैंक देगा कि भाई मेरे को नहीं मालूम क्योंकि मेरे पास डिटेल नहीं है अमर। उसी तरह से मैं कहूँ h डॉट नेम, अगेन मैं बोलेगा भाई मेरे को नहीं मालूम, ब्लैंक है। But this is how the system is going to be. This is how the system is going to be. Everybody clear? Sir, what if we directly assign from here h dot name is equal to or something? S dot name. अगर ऐसे करोगे तो हर एक का यही जाएगा। तो जब तक तुम स्टोर नहीं कर दोगे कुछ वैल्यू, तब तक के लिए वो डिफॉल्ट वैल्यू sir, पिक कर लेगा। Not from here. Like on line number 34 we write right h dot name. So यहाँ पे हम नहीं कर सकते क्या h dot name is equal to something name what we want to do? As if now you can do that because मैंने अभी तक visibility control नहीं दिखाया। तो as if now you can say h dot name is equal to अमर, अगर मैं बोलूं तो अभी देख, अभी तक ये untold था, बट अब मैं बोले काय का untold, अमर है आज से। तो अब मजा देखा, h dot intro, जो मेरे पास पार्शियली, मेरे पास नाम है, जेंडर अभी भी नहीं है, तो मैं बोलूंगा h dot intro, जो मेरे पास नाम है, जेंडर अभी भी नहीं है, तो मैं बोलूंगा h dot intro, जो मेरे पास पार्शियली, मेरे पास नाम है, जेंडर अभी भी नहीं है, तो मैं बोलूंगा h dot intro, जो मेरे पास पार्शियली, मेरे पास नाम है, जेंडर अभी भी नहीं है,
तो इट विल से हाय अमर बट अननोन, आगे का डिटेल्स तूने दिया नहीं है, तो दिस इज आल्सो पॉसिबल. क्लियर? Yes, that's what I was asking. Without name also we can go. Yes, Without name, you can. But then again, whenever we tend to operate, you would have to understand the concept called objectification and object having a local members to it. हर एक के पास अपने local members हो. So that is how you can do. Second thing, So one we of are the question is, defining the local members. हाँ बोल दो, sorry. So we are defining the local members in that bracket column. Yes, we are gonna be used. defining instant members. I would stick to that. Reason, self dot anything is an instance member. Local इसको बोलूंगा. क्यों? क्योंकि जैसे ही set name खत्म हो जाएगा, नाम उड़ जाएगा. But तेरा self dot name would remain with you throughout. Clear? Self is just a variable, na? So we can put another word there. I, me, myself, माझं, जो डालना है. Nobody is For going to calling stop you. But it has to be self there. dot name. हाँ. For नहीं calling नहीं self dot एक समझ, जो उसने क्वेश्चन पूछा, सेल्फ एज आई सेड इट्स अ वेरिएबल, तो इधर आई मी माई सेल्फ कुछ भी लिख, बट फिर वही यूज करना पड़ेगा. अगर तूने माई सेल्फ लिखा तो माई सेल्फ डॉट नेम, माई सेल्फ डॉट जेंडर, माई सेल्फ, तो इट्स अ वेरिएबल बट एनीथिंग यूज. जैसे कि अगेन आई विल टेक अ जावा कंटेक्स्ट, अगर किया होगा स्ट्रिंग ARGS वाज अ वेरिएबल एरे, यू कैन कीप इट एनी, बट स्टैंडर्ड ARGS था. वैसे ये सेल्फ भी है, यू कैन कीप एनी, बट अगर बात किया जाए सिस्टम का तो 99.9% सब लोग सेल्फ ही रखते हैं. ओके, वो भी एक बार देख लेते हैं चलो, सो दैट वी हैव अ वेरी कॉन्क्रीट आइडिया अबाउट व्हाट वी आर डूइंग. तो मैं बोला यार सर ये क्या है, सेल्फ मजा नहीं आ रहा है. तो मैं बोलूंगा एक काम कर सर, सेल्फ के जगह पे माई लिखो. माई अब ना मेरा क्वेश्चन सोच समझ के आंसर करना. माइंड यू, think and answer because now the question would change. ये रन तो कर लूंगा, would the program still work? Because पहला मेथड सेल्फ बोलता है, दूसरा मेथड माई बोलता है, तीसरा मेथड माई बोलता है, तो चौथा मेथड सेल्फ बोलता है. Will this still work? Yes, no. How many say yes? How many say no? जरा देखते हैं, कमेंट करो. Yes or no? Waiting. There is no. There is yes. Yes. No. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, Yes. sir. Yes. Yes. Okay. No. Yes. No. ठीक है. Twing. 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 Congrats. You forgot the point where I said it's a variable. So ऐसा कोई ये local है ना. Self is a reference, but the variable is still local. Self dot become instance. Self अकेला तो एक variable ही है. तो यहाँ माई किया है, माई डाला है, यहाँ माई किया है, माई डाला है, यहाँ सेल्फ बोला है, सेल्फ बोला है. तो yes, you can do this number one, but I would advise not to. मस्ती मत करो. नहीं सर मैंने ना फील के लिए पहले मैं आई लिखा, फिर तीसरे में मी लिखा, फिर चौथे में माई सेल्फ लिखा. सलमान खान मत बनो. Okay, try to be normal. Self use karo, that is better. But jokes apart, you guys can still do that. Allowed, but there are a lot of things which you can do, but you don't do na, because that is not right or that is not advisable. That is how this is also. Everybody clear with this? सर वो पंडा समझा? Yeah. मेथड में लोकल होता है या क्लास में लोकल होता है? मतलब अभी तो मेथड में दिख रहा है. जो अभी के लिए ऐसे ही समझ, जो भी बिना सेल्फ डॉट है वो लोकल वेरिएबल है, जो भी सेल्फ डॉट के साथ है वो इंस्टेंट वेरिएबल है. why I'm going slow? Because एक्चुअल में जब मैं जाऊंगा ना, then there is a local member, global member, instance member and class member. वो और कंफ्यूजन हो जाएगा. तो फिर हम लोग का हालत भीष्म पितामह जैसा होगा, बांध लाके बढ़ जाएंगे हम लोग कि भाई बस अब मैं नहीं खेलने वाला. So that's the reason I'm not introducing more concept. I'm just concentrating on concrete, क्योंकि अगर ये हो गया तो then tomorrow I have a very smooth ride कि धप धप धप. तो इसलिए मुझे और आगे करना था, but with the level of confusion people are, I'm going very slow now. People clear, everybody be honest, think about it. Any question, this is a good time to ask. मैं इससे आगे चलो push नहीं करता, because I feel everybody would require time for revising today. सर मेरे भाई सारे बोल बोल बोल. सर सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम आपने लिखा है, तो उसकी जगह में सेल्फ डॉट एबीसी इज इक्वल टू नेम लिखा तो हाँ, तो तेरा प्रॉपर्टी कौन सा होगा? एवरीबडी ओपन क्वेश्चन. व्हाट वुड बी नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, एबीसी और नेम? एबीसी. ABC. ABC. समझा? समझा दोस्त? क्योंकि तूने सेल्फ डॉट एबीसी इज इक्वल टू नेम किया, तो तूने प्रॉपर्टी खुद पे क्या बनाया?
ABC. That is how things are. That is how things are. Clear? तो डेप सेट नेम में सेल्फ कॉमा नेम रखूं क्या एबीसी रखूं? ना प्रॉपर्टी शुड बी वेरी क्लियरली डिफाइंड. तो सेल्फ डॉट नेम होगा. एक बार दूसरा वेरिएबल तू एबीसी कर दे, चल जाएगा. अगर करंट एग्जांपल का बात करें, अगर तुझे एबीसी से प्यार है तो एबीसी यहाँ पे रख, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. एबीसी यहाँ रख, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर इसे नेम कर दिया तो दैट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम, because then you have to address it as ABC, which is not a natural way. और natural से ज्यादा I would say anybody using your class will be confused कि ABC क्या है. समझा? Clear those? Yes. No? So be very very careful ना guys. For example, I have a sir है, मगर sir करके. तो I remember this, I'm talking about 10 years back when I was a faculty की तरह चल रहे थे. तो ही इज फ्रॉम पुणे अगेन. इनका एक बोलने का तरीका. तो उन्होंने मुझे बोला काय राव कसं है. अब मैं बेचारा सीधा आदमी, मैं इमिडिएटली बोला सर पंचाल. बोला तर त्यात मी काय करू. बोला अरे सर नेम पंचाल है सर, राव नहीं है मेरा. अरे बाबा मैं तुला एड्रेस करतोय. देन आई अंडरस्टूड दैट इज हिज स्टाइल ऑफ स्पीकिंग. तूने जो क्वेश्चन पूछा वो तकरीबन वही है. अगर मैं डॉट एबीसी इज इक्वल टू नेम दू तो एबीसी प्रॉपर्टी समझेगा और एबीसी ही आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा, नेम नहीं. एंड दैट्स समथिंग लीथल व्हिच वी डोंट वांट टू डू. क्लियर? Everybody clear with this? Everybody clear with this? So this is what we want to understand. This is how we want to work with, because this is ultimately what we should have. This is oops लेवल 1 भी नहीं बोल सकता. दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ oops. हम लोग ने सिर्फ oops का क्लास, ऑब्जेक्ट और फंडा देखा. अगर डायग्राम वाइज में बनाऊं, एक लास्ट कॉल इसके लिए जरा ध्यान दे दो. आई एम रिमूविंग एवरीथिंग नाउ, दिस टाइम मोर ऑन अ स्क्रीन साइज कि क्या क्यों और कैसे कर रहे हैं. बट स्टाइल थोड़ा चेंज कर रहा हूं बिकॉज देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डीलिंग विद इट. देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ ऑपरेटिंग विद इट. टाइम चाहिए होगा तो. So how things are going to work? Let's understand class. एक फ्रेमवर्क बना, जो मैं बोल रहा हूँ एक फ्रेमवर्क का नाम ह्यूमन. उसमें बोल रहा हूँ मेरे पास दो बेसिक चीजें बना रहा हूं मैं. सेट जेंडर. जो भी कॉल करेगा वो सेल्फ, जो भी कॉल करेगा उसका रेफरेंस सेल्फ में होगा. इसके अलावा मैं एन भेज रहा हूँ, इसके अलावा मैं जी. कांग्रेस. Internal to this I am creating method. Sorry, internal to this I am creating property. Internal to this I am creating property which says self dot net is equal to n gender is equal to g. Second, अब ये तो मैंने स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिया दोस्तों. अब जब मैं h इज इक्वल टू ह्यूमन, h कैपिटल है भाई. मैंने h के लिए एक स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिया. अब इस स्ट्रक्चर में अनटोल्ड टू यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. अनटोल्ड टू यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है दो मेथड्स. सेट नेम पहला वाला, एंड सेट जेंडर दूसरा वाला. But until and unless they are activated, you will not get properties inside. ठीक है, चलेगा सर, चलो. अब आगे जाके मैंने कॉल मारा h डॉट सेट नेम, मैंने दिया अमर. इसने इसे एक्टिवेट किया. सेल्फ डॉट नेम की वजह से मेरे सडनली मेरे अंदर नेम नाम का प्रॉपर्टी आ गया. फाइन. देन मैंने उसमें स्टोर भी कर लिया अमर. कांग्रेट्स.
फिर h.set जेंडर मैंने डाला मेल, तो मैंने वापस कॉल किया इसे, सेल्फ आया, जेंडर आया, ये रन हुआ, तब जाके मैंने अपने अंदर जेंडर बनाया जिसमें एम दे दी। सो यस, एज अ ऑब्जेक्ट आई एम कॉलिंग प्रॉपर्टीज, आई एक्सेप्ट दैट, बट अल्टीमेटली कोडिंग मेरे पास नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन यानी कि एक्चुअल पार्ट ऑफ कोडिंग जो फ्रेमवर्क है वो क्लास का है, तो सेल्फ इसको एक्टिवेट करता है, बट किसके लिए? एच के लिए। तो हम लोग इसे जो ब्लॉक बना रहे हैं ना, वो तुम्हारा सेल्फ का एक्टिवेशन स्कीम है, तो इसीलिए सेल्फ डॉट जो भी करोगे वो मेरे अंदर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बुलाया ना, सामने वाले ने अगर बुलाया तो अलग होता। So that's how you work. This is the entire concept to play. This is an entire concept to play. See, हम लोग सब नो प्रॉब्लम, चलो हम लोग सब में गए खड्डे में, तुम लोग को लाते हैं, तुम लोग सब नियर अबाउट एक ही एज ग्रुप को बिलोंग करते हो, ज्यादा 1-2 साल 2 साल 3 साल का प्लस माइनस होगा, बट जब सब मिलोगे तभी नहीं होता। सम पीपल आर वे चाइल्डिश यू फील एंड सम पीपल आर वे डिफरेंट देन यू फील, होता है। शायद आप बच्चों में होंगे, शायद बड़ों में होंगे, बूढ़ों में होंगे, अपना अपना नो। मैं हर बार ये बोलता हूँ, मेंटल एज इज सब्जेक्टेड टू व्हाट हैपेंड इन योर लाइफ। Why? बहुत लोगों को माँ बाप ने ना एक अच्छे से क्यूट से वो पपी आता है ना पामेरियन का, चीनू मीनू सा, ऐसे प्यार से रखा होगा बाबू सोना बोल के, तो उन लोग उसी दुनिया में अभी भी, उन लोग को अभी भी एलियस इन वंडरलैंड वाला फील है, बड़बड़ करे, बिकॉज दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू मेथड्स। जब तक मेथड्स नहीं कॉल करोगे तब तक तुम्हारे अंदर प्रॉपर्टीज नहीं होगा, एंड दैट रिमेन्स समटाइम इट हैपेंस। आई रिमेम्बर वापस आया तभी पीपल वेर एज इफ दे आर कमिंग टू मीट, कि मेरे तो मास और ऑक्सीजन इसमें था जब मैं वापस आया कोविड के बाद, तो आई रिमेम्बर दिस पीपल यूज्ड टू कम एंड दे वर लाइक ऑल गुड। मैं दांत निकालने वाला यार, अरे ऑल गुड, और मजा आया, अच्छा है 7 किलो कम हो गया रे, एंड आई लाइक यू स्टिल वांट टू जोक अबाउट दैट अमर? बोलो या व्हाई नॉट, देयर इज समथिंग पॉजिटिव। अरे यार कहाँ से इतना लाते हैं? बोले जब लाइफ में एक्सीडेंट की वजह से 1.5 साल तक व्हीलचेयर में बैठना पड़े और फिर तू पांव पे खड़ा होता है ना, तो मेंटल स्टेट चेंज हो जाता है। एंड देन पीपल नो माय जर्नी कि मेरा यूएस में एक्सीडेंट हुआ था, 1.5 साल व्हीलचेयर पे था, मैं चल फिर नहीं पाता था, देन ऑपरेशंस एंड फिजियोथेरेपी, एंड देन इस साइज में वापस खड़ा रहना, तो मैं अब कोई चीज सीरियस नहीं ले लेता। आई रिमेम्बर व्हेन माय डॉक्टर लुक्स एट माय रिपोर्ट, ही इज लाइक, तो मैं जान पूछ के मुन्ना भाई का कंटेक्स्ट देता है, अब भी एडमिट हूँ कि एक मीटिंग है शाम का, कर क्या हो यार, ये भाई साहब गालियां देना चालू होता, अमर तू ना, बोले तो तू सीरियस क्यों हो रहा है, बोलना क्या हुआ है, कितने दिन बचे, महीने बचे, अमर, बट दैट्स माय मेंटल स्टेट, आई कैन हेल्प इट, मैं सीरियसली लेता नहीं है। ओके, अब मैं बहुत बार उल्टा हंस के बोलता हूँ माँ बाप को या मेरे लेक्चर्स में कि मेरा नाम भगवान बहुत सीरियसली ले लेता है, कि अमर है ना, प्रूव करके दिखा, और मेरे को हर बार प्रूव करके वापस आना पड़ता है, तो ठीक है, बट दैट्स माय वे ऑफ जोकिंग इट, दिस आर माय मेथड्स, माय प्रॉपर्टीज क्रिएटेड, आई डोंट वांट एनीबॉडी टू गो थ्रू दैट, हैप्पी। तो तुम लोग में अब अगर घर का जिम्मेदारी सर पे पड़ा होगा, नो बॉयज गर्ल्स बोथ, दे वुड नो कि भाई मैनेजिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ये मैं लेक्चर ले पाता हूँ, नो एजुकेशनल गाइडेंस से लेके लाइफ कोचिंग तक सब कुछ कर लेता हूँ, बट इफ समबडी आस्क मी रन होम फॉर अ वीक, अपना होम रनिंग, भाई कुकिंग आता है, चलो वो भी कोविड का मेहरबानी है 2 साल में, और मेरी माँ बहुत खुश है एक चीज को लेके कि मैं कुकिंग सीख गया। अब हालत ये होता है ना, वो सहेलियों की तरह हम लोग का डिस्कशन होता है, शील कम है, वो थोड़ा हल्दी कम है, नमक कम है, गरम मसाला डाल, डैड बोलता है तू इसका भी टीचिंग करता है, बोलो अब देखते हैं शेफ बन सकते हैं, बोलो देखते हैं, यूट्यूब चैनल तो है, मैं उस पर कुछ चालू करता हूँ। बट जोक्स अपार्ट, पॉइंट, जरूरत पड़ा ना, आप में से कुछ लोग लाइफ के बारे में बहुत पॉजिटिव होंगे, बहुत लोगों के साथ लाइफ में बहुत कुछ हुआ होगा इसलिए, बहुत लोग सिर्फ इसलिए क्योंकि लाइफ मालूम ही नहीं किया इसलिए, बट दिस इज द पॉइंट ऑफ पाइथन वे ऑफ वर्किंग। जब तक तुम लोग मेथड्स को कॉल नहीं करोगे तुम्हारे अंदर वो प्रॉपर्टीज नहीं है। नो, आई अंडरस्टूड कि नो मैटर नो हाउ ब्रेव आई ट्राई टू बी, मुझे ठंडा पानी पीना अच्छा लगता है पर मैं नहा नहीं सकता उससे। आई ट्राइड अ लॉट, नो, माय फ्रेंड्स वर लाफिंग, बोलते हैं वी बुक्ड एंटायर विला विद अ पूल, और तो भाई साहब पाउंड डाल के बोलते बहुत ठंडा है, मैं नहीं अंदर आएगा, बोला आई कांट हेल्प इट यार, मेरे को ठंडा लग रहा है, मैं नहीं उतरने वाला। दैट्स माय वीकनेस, दैट्स माय प्रॉपर्टी, माय वे ऑफ वर्किंग। वन ऑफ माय फ्रेंड
शी इज फ्रॉम हिमाचल. ठंडी में भी ये मैडम ठंडे पानी से ही नहाती है. लाइक यू डोंट फील कोल्ड. बोला फ्रॉम द स्टेट आई कम फ्रॉम, हमार cold is not what we are afraid of. And she can very well, she can very, उसकी बैंड कहाँ बजती है? मुंबई में. कल ही उसका फोन है, जो मुंबई is so hot. बोलो पहली बात तो मेरा नहीं है, बट ठीक है, क्या हुआ? It's so hot, it's so hot outside. Again, property. तो moral of the story एक चीज समझना, जब तक तुम लोग प्रॉपर्टी कॉल नहीं करोगे, मेथड प्रॉपर्टी वाइज मेथड कॉल नहीं करोगे, प्रॉपर्टी वाइज वो प्रॉपर्टीज क्रिएट नहीं हो. दिस इज द कोर ऑफ पाइथन वे ऑफ वर्किंग. So you call method, तुम्हारे साथ खुदा ना खास्ता कुछ प्लस माइनस हो, प्लस हो माइनस ना हो, तब जाके चीजों में प्रॉपर्टी आएगी ना. तुम लोग को अगर लाइफ जीना है, you want to be successful, till the time you don't go through, grinding yourself to process, प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी. हम में से कुछ लोग, अब मेरा बात बोलता हूँ, being honest, I am an only child. मुझे शेयरिंग नहीं जमता. आई मीन मैं अगर प्लेट लेके बैठूं और कोई दोस्त भी ऐसे मस्ती मस्ती में ऐसे चम्मच से कुछ खा ले, मैं मन से गाली देता हूँ, खुद खा ले ना, मेरा क्यों खा रहा है. माई मॉम एंड डैड स्कोल्ड मी फॉर दैट. बोलते ऐसी होता है, भाई बहन नहीं है ना. बोले एम आई सपोज टू बी ब्लेम फॉर इट? डोंट टेल इट टू मी, इट इज योर जॉब. यू डोंट ब्लेम इट टू मी. यू कैन नॉट टेल मी इसलिए भाई बहन होना चाहिए. तुम लोग को सोचना चाहिए था, मेरे को क्या बोलते हो ना. ठीक है, छोड़ दो, घर का बात है वो, बट अब समझा, क्योंकि मेरे पास वो मेथड ही नहीं है. मुझे वो कभी समझा ही नहीं कि भाई बहन क्या होता है. तो आज मेरे को इशू होता है अगर मेरे खाने में से कोई जाए. इनफैक्ट आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू बी दैट जेलस चाइल्ड कि मेरी माँ से कोई दूसरा बच्चा भी अगर अच्छे से बात कर ले या मम्मी का हाथ पकड़े या कुछ हो, मैं लिटरली ऐसे किस्से हैं, मैंने बच्चे को धक्का मार दिया, लात मार दिया, मैं बहुत हाथ पांव चलाता था बचपन में. अब थोड़ा कंट्रोल में हूँ, बट लॉजिक इज सिंपल. प्रॉपर्टी, तुम में से बहुत लोग होंगे जिन्हें शेयरिंग बहुत अच्छे से आता है. क्यों? छोटे भाई बहन होंगे, घर पे भाई बहन होंगे, दे आर वेरी कूल इनफ टू इट कि अरे ले 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 खा ले, अरे ले ले, बिकॉज you had those methods which created properties. Life में every property which you own, every property which you have is because something happened, and that happening is method. बस ये कॉन्सेप्ट अगर समझा तो पाइथन का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ऑफ oops with class and object तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए. और एक समझो, I always feel the statement is very overrated when somebody comes and tells you, I understand your situation, yaar. I'm with you. Because nobody can understand each other's situation. That is how I feel. हम लोग बोलते हैं, but do you understand the pain? I mean, मैं भी कंसोल करने जिनका ब्रेकअप हो रहा है उनको बोलता है, I can understand. मन में बोलता है, घंटा समझ में आ रहा है. I mean, मेरे जैसे आदमी जो मैकेनिकल कैरेक्टर है, वो बोलेगा भाई ठीक है, गया ना, ठीक है, नहीं जमा, finish. Let's have something else rather than crying about अरे नहीं बहुत बुरा हुआ. But when you go through some pain, only you can understand. ये यूनिवर्सल फैक्ट है. जब खुद हम लोग सफर करते हैं ना किसी चीज पर, तब अपने को लगता है यार बहुत बुरा हुआ रे. और दुनिया में सबसे बुरा लगता है कि अपने साथ ही हुआ है. जब यही सिचुएशन आप दोस्तों पे सोचो, याद करो. आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन फैक्ट हु यूज्ड टू टेल, अरे लड़की या रिलेशन के लिए कभी टेंशन नहीं लेने का रे, कूल. जब खुद का ब्रेकअप होता है तभी अभी देखने का, एक नहीं 4-4 5-5 कंधों का जरूर पड़ रहा है कि अरे है रे, रो ले चल ठीक है. सो दैट्स द हाउ फिनोमेना इज. Has it happened to you? Have you called a method? If you called a method as an object, then the property will be created inside you, and that is a concept called self. खुद पे अगर हुआ तो समझोगे, दूसरों पे होने से ठीक है, उसमें होगा. He did. मैम no, simplest word में मैं बोलता हूँ, if I am lifting weight, good, I will put on the muscles. You are looking at it, you are some another object, you will not put on muscles for the obvious reason, because self reference तुम्हारा है, तुम्हारा method है. That's how you will work with, that's how you will operate with it. Everybody clear? I would request people to go to first 6 pages of your oops notes. That will make your fundas clear. कल oops मैं खत्म करूंगा, but with the question कि क्या everybody is clear, because I could see people are now slowly started getting the feel of it. तो पढ़ लो, रेडी कर लो. आज मैं ज्यादा पूछ नहीं करता, क्योंकि जैसे तैसे सेल्फ, वेरिएबल और मेथड समझाए, उसमें लोकल मेथड, इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड, एक्सटर्नल मेथड, पासिंग दी. तुम लोग बोलोगे सर शुक्रिया, रहने दो, अपने से नहीं होने वाला. तो पहले कर लो, इतना कर लो. टुमारो विल स्टार्ट अगेन एट, हाँ कल का, सिंस अभी तक तो मुझे कोई मिला, आई स्टिल नीड टू टॉक टू माई ऑफिस इफ पॉसिबल. अदरवाइज ये हो सकता है आई नीड टू टॉक टू अथॉरिटी ऑल्सो. तुम्हारा पूरे दिन का शेड्यूल क्या है? एनीबडी हु कैन हेल्प मी आउट, या यहाँ पे अथॉरिटीज में से कोई है तो आई विल टॉक टू देम पर्सनली, बिकॉज अगर आगे का कुछ शेड्यूल है तो मैं अटक जाऊंगा, वरना
एक कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम लोग को मुझे दोपहर को बुलाना पड़ेगा और कुछ नहीं, जो 3 घंटे है वो दोपहर को आ जाएंगे. सो आई एम बैंकिंग ऑन मे बी प्रोबेबली 12, बिकॉज इन लोग ने सुबह का मीटिंग रखा है तो 2 से 2.25 घंटे का मीटिंग स्केल रहता है पूरा. So that is a reason. Let's see if I can have an option of meeting in the second half. Then definitely I'm not going to change. So give me some time. I'll talk to the authorities and both. But तुम्हारा current schedule क्या है? Anybody could help? सर Guys, तुम हेलो 8 से हम 5-6 बजे तक यही होते हैं. हाँ मतलब second half में ऐसे कुछ नहीं है ना कि मेरे पास somebody else enters and we need to go through. No, no, no. सुबह से No, sir. Lab Just रहती we है. then practical with. आपके दिए हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Wonderful. अब तो solution भी मिला, but please question solve करो. Tomorrow towards the last day मुझे याद दिलाना. I'll give you, mind you, मेरे पास जैसे कल टॉपिक का बोल रहे थे ना, मेरे पास हर एक टॉपिक पे 150 से 125 क्वेश्चन है. That's a bank which I carry. मैं सब रिलीज कर दूंगा, तुम लोग के क्लासरूम्स पे डाल दूंगा. Try to solve. No, because अगर वो सब कर पाए ना, you will be at a stage where you will do anything in Python, and which I want ultimately to happen. So चलो tomorrow by night I will reconfirm with authority. एक बार मुझे क्लियरेंस आ जाए ऑफिस से कि क्या बोल रहा है क्लाइंट, accordingly I'll update you guys. Okay? So कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ पीछे आ जाएगा 8. अगर इन लोग ने 8:30 रखा है तो 8 बजे तो इम्पॉसिबल है. Let's see if I can reschedule it. तो तुम्हारा 8 से 11 में ही होगा, देन मेरा होगा. अगर मैं अटक गया तो तुम्हारा 12 या 1 के बाद में खींच लूंगा. बट एनी कंडीशन आई वोंट कैंसिल द लेक्चर. एवरीबॉडी क्लियर? सिर्फ टाइमिंग शिफ्ट हो सकते हैं. सो आई लेट यू नो. चलो, थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. एक बार गो थ्रू करना, रिकॉर्डिंग ऑन करो, नोट्स पढ़ो. द सीक्वेंस शुड बी सिंपल. एक बार पहले 6 पेजेस पढ़ो और उसके बाद वापस लेक्चर सुनो. लॉट ऑफ थिंग्स शुड मेक सेंस टू यू गाइस. ओके, चलो, बाय गाइस, थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, sir. Ma'am. Just a second. मैम रिकॉर्डिंग चालू. Ashwini, हाँ मैम. recording.